बेटा। हाँ, हाँ, हेलो। Good afternoon to one and all. I, Ashutosh Manor Popte, Assistant Professor of English, Rashtriya Technology College, Chimur, welcome you all in this one-day online interdisciplinary webinar on mental health and stress management organized by Department of English, Rashtriya Technology College, Chimur. First of all, let me pay my humble obeisance to Vandaniya Rashtriya Technology Maharaj, the founder of modern state of India, the architect of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, the Mahatma who had championed the cause of women's liberation, Mahatma Jyotirao Phule, and his better half, Kranti Jyoti Savitribai Phule, India's first woman teacher, the father of Indian reservation policy. In fact, I personally believe Rajashri Shahu Maharaj, the founder of Maratha dynasty, our beloved Chhatrapati Shivaji Maharaj, and all the great persons and figures. I would like to pay my humble obeisance to them first of all. Friends, I would like to offer a very warm welcome to all of you on behalf of Rashtriya Tukroji College, Chimur, Department of English, our President, Dr. Deepak Yavle sir, our Principal, Professor K.R. Patil sir, our Vice Principal, Professor Dr. P.T. Bansod sir, Head of Commerce Faculty, Professor Dr. S.T. Gajbeh sir, and all the teaching and non-teaching fraternity of the Institute, and especially by our Department of English that has clubbed all of us together for this one-day online interdisciplinary webinar on mental health and stress management. In the first session of the webinar, we have with us a great personality, in fact, Honorable Principal Dr. Rajendra R. Jani, Principal, Arts and Commerce College, BC. For 28 years, Jani sir has been working in the academic sector, facilitating a learning atmosphere in his own college, which has been recently accredited by NAC under his noble vision and commitment, and also his positive thinking temperament. As John C. Maxwell rightly says, a leader is one who sees the way, goes the way, and knows the ways. Actually, I'm made up, knows the ways. So we are really fortunate to have him as our guest of honor in this one-day online webinar on mental stress and mental health and stress management. Secondly, I would like to offer my warm welcome to Honorable Principal of our college, Professor K.R. Patil sir, also Associate Professor and Head, Department of Marathi, RT College, Chimur. Welcome, sir. And next, I would like to offer a very special welcome, to a very special person, Advocate Sri Anantaji Kulakshe, Managing Director of United Success Academy and Be Positive Academy. Both the institutions are situated in Nagpur, and what is most significant thing about our resource person is that he trains more than 4,000 people every year from different professions. So that's the most incredible achievement he has as a trainer. He is not only a human resource trainer, but he is also a psychologist, a famous psychologist. In fact, I can say he is a professional psychologist. And education is a life coach, and his special interests lie in yoga and meditation as well. So I would like to welcome our special and most esteemed resource person, Advocate Sri Ananta Gulakshe sir, on behalf of our Department of English, RT College, Chimur. And finally, the program which I think cannot be complete without participants. So I must also express my sincere thanks to them for joining our webinar. I feel privileged to offer to extend my warm welcome to all the delegates from different colleges who are present today in this webinar.
In the first session of our webinar, that is the formal inauguration of a webinar, where I would like to first of all invite our principal, Professor K.R. Patil sir, to express his best wishes and also enlighten us on his ideas on mental stress, especially in the present scenario. I would like to request Patil sir to express his opinion. Patil sir. Hello. Sir. सर तुमचा व्हिडिओ ऑफ आहे. हॅलो 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 व्हिडिओ ऑन करा. व्हिडिओ अच्छा ठीक आहे सर. हाँ बेटा ये वीडियो वगैरह के कहाँ से दबाते हैं? हेलो गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. हॅलो हा सर तुम्ही अनम्यूट करा. म्यूट केलं स्वतःला. अनम्यूट करा सर. हॅलो अनम्यूट करा. अनम्यूट करा. ते माईकचं बटन दाबा. हॅलो तुमच्या समोरचं माईकचं बटन दाबा सर. हेलो सर. हाँ हाँ गुड आफ्टरनून सर. हाँ गुड आफ्टरनून सर. हाँ कार्यक्रमाला थोडा उशीर झाला त्याबद्दल मी सर्वांचे व्यक्तिशः दिलगिरी व्यक्त करतो आणि या वेबिनारला उपस्थित मराठीमध्ये बोलतो मी, इंग्रजीमध्ये बोलत नाही. चालेल का सर? हो सर काय प्रॉब्लेम. हा नाही इंग्रजी तुटक पुटक आहे आपली थोडी, त्याच्यामुळे मराठी मी बोलतो. ओके. हा तर चालेल ना सर? जाने सर. हा आजच्या या वेबिनारच्या अंतर्गत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांना मी वंदन करतो. गांधी सेवा शिक्षण समिती अंतर्गत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाविद्यालय चिमूर कायम संलग्नित गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली यांच्या अंतर्गत ऑनलाइन वेबिनार IQAC अंतर्गत एक दिवसीय इंग्रजी डिपार्टमेंट या विभागाअंतर्गत आमच्या महाविद्यालयामध्ये आपल्या सर्वांचं मी हार्दिक स्वागत करतो. या वेबिनारच्या माध्यमातून जे काही कोरोनाचे दुष्परिणाम या अंतर्गत जे काही प्रश्न उद्भवलेले आहे त्या उद्भवणाऱ्या प्रश्नाला मानसिकता ही कारणीभूत आहे किंवा नाही यावर चर्चा व्हावी याकरता आमचे मार्गदर्शक या कार्यक्रमाचे उद्घाटक आदरणीय डॉक्टर प्राचार्य राजेंद्र जाने सर, कला वाणिज्य महाविद्यालय भिशी, आमच्या गांधी सेवा शिक्षण समितीचे अध्यक्ष आदरणीय ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही हे काम करतो असे माननीय डॉक्टर दीपक भाऊ यावले साहेब, या गांधी सेवा शिक्षण समितीचे सचिव आदरणीय माननीय श्री विनायक बापू कापसे साहेब, या गांधी सेवा शिक्षण समितीचे उपाध्यक्ष माननीय सय्यद सर आणि या गांधी सेवा शिक्षण समितीचे सर्व आमचे संचालक मंडळाचे पदाधिकारी आणि महाविद्यालयाचे प्राध्यापक बनसोड सर, प्राध्यापक गजबे सर, प्राध्यापक पिशे सर, प्राध्यापक राजूवाळे सर, प्राध्यापक कत्रोजवा सर, प्राध्यापक बनसोड सर, प्राध्यापक मेंढुळकर सर, प्राध्यापक कांबडी सर आणि आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक आमच्या महाविद्यालयाचे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सन्माननीय कुमरे साहेब, आमचे अधीक्षक श्री विनोदजी शास्त्रंकर साहेब आणि
जे आमच्या कॉलेज महाविद्यालयामध्ये परिसरामध्ये जे आम्हाला वेळोवेळी मदत करतात असे माननीय अनिलजी राजपूत साहेब आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आजच्या या प्रमुख विषयाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन करणारे आमचे सन्मित्र ऍडव्होकेट गुलाक्षे आणि ज्यांनी या विषयाला एक या कोरोनाच्या महामारीमुळे जे प्रश्न उद्भवणार असेल त्या प्रश्नाच्या संदर्भातून याच्यातून आपल्याला कशी आपली मानसिकता ही या कोरोनाच्या महामारीमुळे भयभीत झाली यावर मार्गदर्शन करण्याकरता आमचे मित्र गुलाक्षे, ऍडव्होकेट गुलाक्षे आणि या इंग्रजी विभागाचे विभाग प्रमुख प्राध्यापक आशुतोष पोपटे सर, दुसरे मालके सर, प्राध्यापक मालके सर, प्राध्यापिका दिगोरे मॅडम आणि विविध विभागाचे आमच्या महाविद्यालयाचे सन्माननीय प्राध्यापक मंडळी, आजचा जो विषय आम्ही याकरिता निवडला की कोरोना या दुष्परिणामाने जागतिक महामारीच्या रूपात आलेल्या कोरोनाच्या प्रकोपाने एक भयावह सामाजिक व आर्थिक व ताणतणावाची स्थिती उत्पन्न झालेली आहे. आमचा ग्रामीण भागातला विद्यार्थी किंवा शहरी भागातलं वातावरण हे अजूनही भयभीत आहे. मी सुद्धा भयभीत आहे या रोगामुळे. याच्यातून आपल्याला जे काही प्रश्न निर्माण झाले आहे आणि त्या परिस्थितीमध्ये वैफल्यग्रस्त वातावरण निर्माण झालेलं आहे, त्यामधून आपल्याला छोट्या छोट्या कारणावरून विविध अपघात घडत आहे, त्यावर आपल्याला या गोष्टीकडे प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करायचं होतं. त्या दृष्टिकोनातून आम्ही हा विचार विनिमय करून आम्ही या विषयांची आपण इंग्रजीच्या या डिपार्टमेंट मार्फत आपण काहीतरी या विषयाच्या अनुषंगाने आपल्याला काही मांडणी करता येईल का, तर या अनुषंगाने आम्ही विचार केला आणि त्यामुळे मग महाविद्यालयात शिकणारा तरुण असो तरुणी असो या गोष्टीकडे जास्तीत जास्त आत्महत्येकडे कल निर्माण झालेला आहे. त्यातून हे नैराश्य निर्माण झालं का, चिडचिड निर्माण झाली का, त्यामुळे किरकोळ कारणामुळे एकमेकाकडे ह्या गोष्टी उद्भवलेल्या आहे. म्हणून कोरोनामुळे जगण्यावर आपल्याला बंधनं आले आहेत का, यातून जे प्रश्न उद्भवलेले आहे ते प्रश्न अर्थात मोकळेपणाने आधी आपण जीवन जगत होतो त्या मोकळेपणावर फिरणंही बंद झालेले आहे आणि म्हणून या एकूणच प्रकारामुळे आपल्याला अनेक प्रचंडाला सामोरं जावं लागत आहे, नैराश्य निर्माण होत आहे. म्हणून मला असं म्हणायचं आहे की कोरोनामुळे मोकळेपणाचे सगळे जगण्याचा नैसर्गिक हक्क आपल्याकडून हिरावून घेतला आहे. त्यामुळे सामाजिक नैराश्य असो किंवा व्यक्त होण्याचे मार्ग सुद्धा आपल्याला बंद झालेले आहे. त्यामुळे आपण या आत्मघाती प्रकाराकडे वळू नये यासाठी आजचा आम्ही हा विषय निवडलेला आहे. आणि त्यामुळे अगदी 2-3 दिवसात आम्ही हा विषय पोपटे सरांनी खूप मेहनत घेतली, त्यांचं मी विशेष आभार मानतो, अभिनंदन करतो. आणि आमचे डॉक्टर जाने सर आमचे मार्गदर्शक त्यांनी सुद्धा आम्हाला खूप मदत केली, त्यांचे सुद्धा मी इथे अभिनंदन करतो, आभार मानतो आणि आमच्या या वेबिनारला आम्ही शुभेच्छा देतो. इथे मी थांबतो. धन्यवाद. Thank you so much, sir. Your words have always been a source of inspiration for us. Secondly, I would like to invite our guest of honor, Honorable Principal, Dr. Rajendra R. Jane, sir, from Arts and Commerce College, Bhussi, to enlighten us on his ideas on the issue and as well as to officially inaugurate this webinar at his own hands. Jane, sir. Hello. Hello. Jana sir. Hello. हाँ.
Hello, Hello, sir. You are audible. Hello. am I audible? Yes, yes, yes. Yes, okay. So, good afternoon, everybody. I am very happy at this moment, and I would like to pay my homage to late Sri Rashtrasant Tukadoji Maharaj. I would like to take some names: Dr. Yavle, Mr. Kapse sir, Mr. Sayyed, Mr. Karthik Patil, officiating principal of college, Dr. Bansod, vice principal, and especially Mr. Ashutosh Pofte, head of the Department of English. First of all, I congratulate Patil sir, Pofte sir, Rangdale sir, Razurwade sir, Pise sir, and all sirs, because they have chosen a very good topic which is very much important, and within a short span of time they organize this program. Then I express my sincere thanks that you have given me the chance to express my views on this occasion. So as far as the subject is concerned, mental health and of course tension. I remember very famous essayist R.L. Stevenson. He says, to travel hopefully is better than to arrive. दोस्तों, चलना हमारा काम है. We are all in lockdown due to pandemic, but we cannot stop our journey because our journey starts from our birth and it ends at death. So this is a journey, and while traveling, there are many moments of sadness, happiness. This is the cycle. We have to manage it. We have to be positive. I remember famous lines of Robert Frost. Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. No hurry and no worry. It has been taught by pandemic. We lived happily, we lived freely, and we enjoyed lockdown, but at the same time, we must be positive enough. दोस्तों, टॉपिक तो बहुत अच्छा है, कितना बोलूं, क्या बोलूं. So physical health is also important. The topic is mental health, but mental health and physical health, they are correlated. When we think of mental health, you must be you must have very good physical health because they are very much related. When there is physical problem, naturally your mental health is in danger. Mental tension, naturally we carry some burden, and that is mental burden. So these are very much related to related to each other. When I say physical health and mental health, I remember psychological terms. Three things are very much important: physiology, focus, and language. When we are in lockdown, these three things are very important. दोस्तों, हमारी एक फिजियोलॉजी कैसी होना, यानी हमारा शरीर स्वास्थ्य कैसा होना, और शरीर स्वास्थ्य के लिए हमने क्या करना चाहिए, तो
जरूर डिटेल में अनंत सर बताएंगे। और हमारा ध्यान किधर है? फोकस। वेयर इज माय फोकस? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद में टर्म आता है लैंग्वेज, एंड ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड विथ योर थॉट प्रोसेस। ये सब चीजें जो है ये हम सोचते कैसा, क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, सोचने का तरीका कैसा होता है। देखिए लॉकडाउन है, सभी लोग उदास है, तो उसमें मुझे अच्छा रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो आई विल हैव टू थिंक पॉजिटिव। व्हाट कैन आई डू? I will have to do something for because I'm existing in this world, so I must think positively. So that is the very important point. दोस्तों, then comes the term tension. टेंशन सबको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है। That is the debating point. Someone says that tension is bad, someone says tension is good. What is actually tension? दोस्तों, tension is good as well as bad. Ashutosh sir, he was carrying the tension while organizing the program, and because of that tension he could organize the program. दोस्तों, आशुतोष सर, पाटिल सर, ये जो सब टीम है कॉलेज की, ये कुछ थोड़ा टेंशन ले रहे थे, इसलिए ये प्रोग्राम हुआ है। ये प्रोग्राम हो रहा है बिकॉज ऑफ टेंशन। उन्होंने थोड़ा टेंशन लिया, सो इन दैट वे टेंशन इज गुड। यदि मैं टेंशन नहीं लेता तो मैं कॉलेज में राइट टाइम नहीं जा सकता, कॉलेज में पढ़ा नहीं सकता। टेंशन तो लेना ही चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं डोंट टेक टेंशन, टेंशन लेने का नहीं। अरे टेंशन तो थोड़ा लेंगे तो भी काम होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टेंशन शुड नॉट बी एक्सट्रीम। टेंशन बहुत ज्यादा जब होता है तब प्रॉब्लम है। टेंशन बहुत कम भी नहीं होना, कहीं ज्यादा भी नहीं होना। और उसको कैसा मैनेज करना, इसके लिए हमारे पास है अनंत गुलक्ष्य, वो बताएंगे। क्योंकि आई एम नॉट अ मेन स्पीकर, आई एम गोइंग टू इनॉग्रेट द प्रोग्राम। एंड और एक बात है, नो वन कीप्स टेंशन विथ हिम और हर, he or she gives the tension to others, that is sure. When class 1 officer says something, he gives the tension to class 2 officers. Class 2 officers gives the tension to class 3 officers. Class 3 officer gives the tension to class 4 workers. And where should class 4 workers share the tension? Class 4 worker goes to his house and he shares the tension with his बीबी and बच्चे। टेंशन कोई रखता नहीं है, टेंशन तो ऑटोमेटिकली इधर उधर से बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से टेंशन हम बैलेंस करने का, नेचुरल बैलेंस करने का सोचते हैं, तो उसको सही तरह से साइकोलॉजिकल टर्म लेके अच्छी तरह से मैनेज कैसा करना। क्योंकि ये जो टेंशन है क्लास 1 से क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और को भी टेंशन हो रहा, ये तो क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम टेंशन नहीं है। ये ऐसा ही बहते जा रहा है। किसी रास्ते में कोई मिल गया उसको टेंशन अपन दे देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में टेंशन है। तो इसका एक प्रॉपर तरीके से प्रोग्रामिंग कैसा करना, इसको कैसा मैनेज करना, हाउ टू मैनेज द टेंशन, दैट इज द स्किल, एंड दैट स्किल विल बी एक्सप्लेन्ड बाय अनंत गुलक्ष्य सर। दोस्तों, sometimes when you take tension, it can be
expressed in anger. Sometimes anger is good, sometimes anger is bad also. It is also क्योंकि हमने ये भी सुना है किसी किसी को इतना गुस्सा आ गया कि वो गुस्सा उसने पॉजिटिविटी में डाल दिया और अच्छी तरह से एक नया एक पर्सनैलिटी हमारे सामने आई। हमने ये भी सुना है कि गांधी जी को ट्रेन के बाहर निकाला गया था। ऑफ कोर्स उनको भी टेंशन आया होगा, लेकिन वो टेंशन का इस्तेमाल उन्होंने सही तरह से किया कि उन्होंने मन में सोचा कि आपने मुझे ट्रेन के बाहर निकाला, मैं आपको मेरे देश के बाहर निकालूंगा। That is, anger is transformed into positive reaction, positive thinking. बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अनंत गुलक्षी is going to speak in detail. तो ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है। पाटिल सर ने बहुत अच्छा बोला कि वी आर इन डिप्रेस स्टेट। स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, स्पेशली एजुकेशन फील्ड जो है उसका क्या होगा, कैसा होगा, बच्चे कब आएंगे, क्या आएंगे, बच्चों को भी टेंशन है। एग्जाम दो या एग्जाम को उसको ऑप्शन दिया है, एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम नहीं भी दे सकते। दिस इज द ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे खुश भी है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे क्या करना, कौन सा फॉर्म भरना। टेंशन इज देयर, बट दे आर मैनेजिंग द टेंशन इन दैट वे। दिस वेबिनार इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज स्टूडेंट्स लोग क्या सोच रहे, टीचर्स क्या सोच रहे, पेरेंट्स क्या सोच रहे। पेरेंट्स के मन में ये भी चालू है कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक पढ़ाई नहीं होती, जब तक हमारी पढ़ाई नहीं होती तभी तब तक हमारी पर्सनैलिटी अच्छी बनती नहीं। एंड आइडियल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम सपना लेके आए हैं कि हम एजुकेशन में से आइडियल सिटीजन्स ऑफ इंडिया बनाएंगे और एक अच्छा कंट्री, अच्छा एक नेशन बनाएंगे, यूथ फॉर नेशन। और वो हम लोग सोच में है, सभी सोच में। सो बहुत सारी बातें होंगी, बातें तो बाद में भी होंगी। तो मैं I declare this webinar is open now, and hereafter the speakers will be there. I especially thank you everyone. My thanks are due to Mr. Karthik Patil, Vice Principal Bansod, Ashutosh Popte, all these people who provided me this opportunity to express my thoughts. दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा एक वेबिनार आपने आयोजित किया है। कांटे रास्ते में बहुत है, कांटे तो बहुत है, इतने सारे कांटे तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन कांटे जरूर कम करेंगे जहां से गुजरेंगे हम। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Jana sir, for your wonderful speech on the present scenario. Friends, we are passing through a very disturbing phase in our life. Perhaps the COVID-19 has brought a lot of challenges for us. And besides, there is also Chinese challenge at the border. And maybe people of India are better to deal with everyone, maybe with Chinese or maybe with COVID-19 pandemic situation. So after the formal inauguration of this one-day online webinar on mental health and stress management, let us proceed to the actual session with our special and most esteemed resource person, Advocate Anantaji Gulakshi, Managing Director of United Success Academy and Be Positive Academy. Friends, the issue of mental health and stress management is of great significance today.
I may not be wrong if I link this issue with the rise of globalization and changes that have overtaken our simple and more human life. Our life was more human, but now it is no longer human. Maybe we have also lost some of the values as well. So, with no end to this pandemic, this webinar should be seen as an attempt to try to find solution to that particular state of mind which is caused by globalization and our busy and hectic life. So to throw more light on the issue, we have with us Ananta G. Gulakshe. But before I hand over the session to him, let me give you a brief insight into the personal and professional accomplishment of Advocate Sri Ananta G. Gulakshe. Advocate Sri Ananta Gulakshe is the managing director of United Success Academy and Be Positive Academy. Both are reputed institutes situated in Amravati as well as in Nagpur. And both the institute train people in English speaking and personality development courses. The academy organizes biggest ever summer camps in Nagpur. That is really important, and also conducted several other contests. Mr. Gulakshe is also a famous professional psychologist, life coach, educator, and human resource trainer. And as I have already told you, he trained more than 4,000 people from different professions every year, and that is really incredible. He is deeply interested in human psychology, hypnotism, spiritualism, and palmistry as well. His personal interests also lie in teaching, public speaking. I have told you he is a powerful orator, painting, social work, and besides being invited as a resource person in number of social, political, and cultural gatherings, he has also maintained a social angle in his life. He organizes health camp as well as tree plantation drive in which near about 800 academy students participated. Mr. Gulakshe is also interested in acting, directing dramas, musical meditation, and dynamic yoga. I'm going to ask you a question on that issue. I have not heard that word before, dynamic yoga. So I hope you will be able to explain to me that idea. What is dynamic yoga? And as far as his education is concerned, Mr. Gulakshe is BA in Marathi literature, MA in English, sociology, philosophy. Mr. Gulakshe also possessed the degree of journalism. He is also MFA in drama. He was a gold medalist in LLB in the year 2008, and he has also taught in MSW, MBA in marketing and HR. And nowadays, he's pursuing his PhD in clinical psychology. In 2010, Mr. Gulakshe was selected as the outstanding personality in the NIT MBA college. He also has 1 year experience of working as an acting reporter for the daily Marathi newspaper Deshonnati. And for 12 years, he has handled criminal cases as an advocate in high courts and district court in Nagpur. So on behalf of our department, our college, our principal, our president, I would like to welcome, I cannot say with huge round of applause because there is nobody to make applause. It will be very disturbing for us. So welcome, sir. And now I'm going to hand over the entire session to you. The session is yours. Thank you, sir. Am I audible? Yes, yes, you're audible, sir. Yes. Thank you so much इस कॉलेज के सभी पदाधिकारी जिन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं कुछ शेयर कर सकूं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि बाकी सभी लोग अपने फोन को म्यूट कर दीजिए ताकि बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो। मैं सर से जानना चाहूंगा कि सर मुझे यहाँ से कितना समय बोलना है, क्योंकि हाँ सर, बोल सकते हाँ हैं। सर, बहुत समय बाकी है। हमें कितना समय बोलना है? 1.5 आवर बात कर सकते हैं। 1 आवर बात कर सकते हैं। हाँ, 5:15 हुए हैं। कहाँ तक अपना 6:30 तक जाएंगे सर। हेलो, हाँ 6:30 तक जाएंगे। हेलो सर। 1.5 आवर। हाँ, ओके, हम सभी पार्टिसिपेंट को लास्ट में मौका जरूर देंगे। यस सर। ओके सर।
ओके ओके, सो हम शुरू कर देते हैं। यस यस सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है। काफी अच्छे विषय पर बोलने का, कुछ शेयर करने का मौका मिला है। और मैं जरूर चाहूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं उनके पास कुछ ना कुछ लिखने के लिए जरूर हो, क्योंकि काफी सारी ऐसी बातें होगी जो मैं कहूंगा, आप केवल सुनोगे और उसको नोट डाउन नहीं करोगे कुछ ऐसे खास पॉइंट, तो शायद इसका फायदा इतना आप नहीं ले पाओगे। क्योंकि काफी सारी ऐसी बातें होगी जो मैं आपको इस तरीके से बताने वाला हूं जो आपके असल जिंदगी में और आपके इस नॉलेज से आपके परिवार को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो हम बात करते हैं हमारे आज के विषय पर। जो मुझे विषय दिया है एज अ साइकोलॉजिस्ट, में जरूर बताना चाहूंगा मैं अनंत घुलक्षे, जो एज अ साइकोलॉजिस्ट जिस विषय को आपके सामने रख रहा हूं वो है मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत जरूरी विषय है। जैसा कि जाने सर ने भी कहा है, अवर बॉडी एंड अवर माइंड बोथ आर कनेक्टेड। जैसे हमें अपना फिजिकल हेल्थ बेहतर रखना जरूरी है, वैसा ही हमें अपना मानसिक स्वास्थ्य रखना जरूरी है। एक रिसर्च ये कहता है यारो, एक रिसर्च ये कहता है कि 4 में से 1 इंसान ये मेंटल इलनेस का शिकार है। अब जरूरी नहीं कि वो मेंटल इलनेस सीवियर किस्म का हो, क्योंकि सीवियर कुछ बहुत सारे मेंटल इलनेस आपने सुने होंगे, मेंटल डिसऑर्डर सुने होंगे, स्किज़ोफ्रेनिया है, काफी सारे हैं, जैसे ओसीडी है। लेकिन हम बात करने वाला है उसमें से कुछ ऐसे जो आमतौर पर ज्यादातर लोग फेस करते हैं, वो है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। यस, डिप्रेशन इज द बिगेस्ट इशू नाउअडेज। जब तक ज्यादातर लोगों ने सुशांत राजपूत के सुसाइड के बारे में सुना, ये विषय ज्यादा ही अभी चर्चा हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस मानसिक स्वास्थ्य के बारे में इतना अवेयर नहीं होते। देखिए, ऐसा होता है कि हम जब बीमार होते हैं, हमें बुखार है या कोई भी प्रकार की बीमारी होती है, तो हमारा परिवार हमारा ख्याल रखता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को यही भी पता नहीं है कि हमारा मन भी बीमार हो सकता है, और उस वक्त क्या ख्याल लेना है हमें अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए, और हमारे परिवार में किसी का मन स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं है तो ऐसा क्या है जो करके हम अपने मन के स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। तो हम इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। मैं जितनी भी बातें कहूंगा, जो भी आपको बताऊंगा, जो भी सिखाने की कोशिश करूंगा, मैं जरूर चाहूंगा कि आप सभी लोग उसे ध्यान से सुने, और हो सके जो आपको लगता है कि आपके काम का है उसे जरूर नोट डाउन कीजिए। अंत में मैं जरूर मौका दूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे पाऊं। हो सकता है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपसे निगड़ित कोई भी दूसरा इंसान होगा, उसके लिए ये नॉलेज, ये ज्ञान जरूर काम में आएगा। अब एज अ साइकोलॉजिस्ट कई सारे सालों का तजुर्बा, जो अब तक मैं कई सारे क्लाइंट पेशेंट को देखा हूं, कई सारे कॉलेज में मैं सिखाता हूं इस विषय को, तो वो सारी चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें मेंटल हेल्थ है या नहीं, ये कैसे पता करें। खास करके हमें स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन, कोई तनाव है कि नहीं, ये पता कैसे करें, इसके जांच करने के लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, और अपने आप से, अपने मन से ये सवाल पूछिए कि इस सवाल का जवाब क्या आ रहा है। तो अपने आप से पूछिए, क्या आपकी चिड़चिड़, इरिटेशन ज्यादा बढ़ गया है? क्या कहीं आपको गुस्सा ज्यादा आता है? क्या कहीं आपका काम में मन नहीं लगता? कहीं ना कहीं आगे क्या होगा इस सोच में मन रहता है, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। एंजाइटी यानी बिना कोई लॉजिक के इलॉजिकल बातों पर बहुत ज्यादा आपकी सोच कहीं उसी पर टिकी तो नहीं है? क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि कोई भी प्रकार का फिजिकल दर्द, इसका भी कारण साइकोलॉजिकली होता है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि 99% या 90% जो बीमारियां होती है वो साइकोसोमेट्रिक होती है, मतलब साइकोलॉजिकल होती है, इसीलिए उसका असर हमें शरीर में दिखता है। तो फिर वो पीठ दर्द हो, या फिर बदन दर्द हो, या जोड़ों में दर्द हो, सर दर्द हो, माइग्रेन हो, ये भी कारण मेंटल हेल्थ का हो सकता है। कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आती, वो देर तक जागते रहते हैं। या फिर देखिए कि कहीं आपकी ईटिंग हैबिट तो बदल नहीं गई, मतलब इस स्ट्रेस, तनाव, इस टेंशन की वजह से या तो आप ज्यादा खाना शुरू कर देते हो, या फिर खाने की इच्छा ही नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, काफी समय तक उठते नहीं, किसी से इंटरेक्शन करते नहीं, या फिर वो नॉर्मल लोग जहां पर खुशी का इजहार करते हैं, खुशी को महसूस करते हैं, वो भी वो कर नहीं पाते। उनको किसी
ऐसी खुशी वाले समय पे वो खुश नहीं हो पाते, वो खुल के जी नहीं पाते, या फिर वो बहुत ज्यादा बातें भी करना शुरू कर देते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के शारीरिक और मानसिक कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं। तो ये सवाल अपने आप से पूछो, क्या कहीं इसमें से कुछ सवालों के जवाब आप यस दे रहे हो? क्या आपके परिवार में कोई ऐसा है जो इसमें से कोई लक्षण दिख रहा है उसे? ये सारे लक्षण कहीं ना कहीं हमारे बिगड़े हुए मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाता है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पर केवल समस्या की बात करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हम केवल समस्या की बात नहीं करेंगे, बिकॉज मैं जानता हूं जब हम समस्या पर ज्यादा फोकस करेंगे, समस्या प्रॉब्लम बढ़ेगा। हेलो, फिर से एक बार, जब हम समस्या पर बात करेंगे, समस्या पर फोकस करेंगे, समस्या प्रॉब्लम बढ़ेगा। हम सॉल्यूशन पर बात करेंगे, हमें सॉल्यूशन मिलेगा। हम सॉल्यूशन पर बात करेंगे, हमें रिजल्ट मिलेंगे। और यही करना है। आज जैसे ज्यादातर लोग अलग अलग कारण के वजह से स्ट्रेस में हैं। विद्यार्थी यदि मुझे सुन रहे हैं, उसको अपने करियर की, अपने एग्जाम की चिंता हो सकती है, कॉलेज कैसे होगा, क्या आगे का होगा, ये चिंता सता रही है। कोई बिजनेस वाला है तो बिजनेस या तो बहुत बुरी तरह से बुरी स्थिति में होगा, या बिजनेस आगे कैसे शुरू होगा, इसकी चिंता होगी। जॉब वालों को काम करने के बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो अभी नए टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या सीख या समझ नहीं पा रहे हैं, उसके द्वारा ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेना है, ये सारी चीजें, वो अलग अलग प्रकार की दिक्कतें हर किसी को आ रही है। बट ये सारी दिक्कतों से बाहर आके उस स्ट्रेस को, उस तनाव को, उस टेंशन को, उस एंजाइटी को, उस डिप्रेशन वाले सिचुएशन से कैसे हम बाहर आए, इस पर हम फोकस करने वाले हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप ये सारी बातों को समझे और उस सॉल्यूशन पर जरूर सोचिए, उसको अमल में लाइए। अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यारो हम जानते तो बहुत कुछ है, हेलो, हम जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन अपनाते बहुत थोड़ा है या बहुत कम है। और इसी वजह से प्रॉब्लम है। मतलब कई सारी बातें मैं जो आपको कहूंगा, हो सकता है कि शायद आप ऑलरेडी जानते हो। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं बोलूंगा कि आपकी आवाज बहुत आ रही है, डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है। अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज, म्यूट कीजिए। यस, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, बाकी डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है आवाज का। बाकी सब मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे रिप्लाई दीजिए, ताकि मैं बोले जा रहा हूं, लेकिन आप चैट में लिख सकते हैं। आप चैट में लिख सकते हैं, मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके ओके। सो हम शुरू करते हैं। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम समस्या पर ध्यान ज्यादा न देते, उसके सॉल्यूशन पर हम ध्यान देंगे। हमारा ज्यादातर प्रॉब्लम ये है कि हम जानते बहुत कुछ है, हम अपनाते बहुत कम है। तो हम आज बात करने वाले, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं उस विषय को तो बहुत ज्यादा जरूरी है। शारीरिक हेल्थ के साथ साथ वो है मानसिक हेल्थ, मानसिक आरोग्य। और ये मानसिक आरोग्य को बेहतर करने के लिए, इस मानसिक आरोग्य को बेहतर करने के लिए, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या ऐसा है, क्या करना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या ऐसे उपाय हो सकते हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं। अब जब हम इन सारी चीजों की बात करेंगे, तो आपको मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। माना तो जीवन में सुख ही सुख है, हेलो, माना तो जीवन में सुख ही सुख है, न मानो तो जीवन दुख का दरिया। मानो तो जीवन में सुख ही सुख है, न मानो तो जीवन दुख का दरिया। उससे पूछेंगे ये जीवन क्या है, उससे पूछोगे ये जीवन क्या है, तो जीवन केवल और केवल बस देखने का नजरिया। ये जिंदगी के जीवन कुछ भी ना होते हुए केवल और केवल ये देखने का नजरिया है। और उसी देखने के नजरिए को यहाँ हमें कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। जो बहुत ज्यादा किसी ना किसी मानसिक समस्या से ग्रस्त है, उन्होंने जरूर साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से मिलना होगा, उनको काउंसलिंग लेनी पड़ेगी, थेरेपी या ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, या कोई मेंटल बीमारी है तो जरूर उसका इलाज करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग ये करना पसंद नहीं करते, क्योंकि साइकेट्रिस्ट के पास चले गए, कोई दवाई ले ले, तो लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं होती है। बट हमें समझना होगा कि जैसे हमारा शरीर बीमार होता है, वैसे हमारा मन भी बीमार हो सकता है। बट हम अभी फिलहाल क्या कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जो हमसे जुड़े हैं उनके लिए, हम उन पर बात करेंगे। यार ये जो स्ट्रेस है, ये जो एंजाइटी है, ये जो डिप्रेशन है, ये तनाव नैराश्य है, ये सारे जो मानसिक बीमारी है, जिससे ज्यादातर लोग ये
ज्यादातर लोग इस समस्या को फेस कर रहे हैं। तो ऐसा तो क्या है जिसके वजह से, जिसको जान के हम इसको कम कर सकते हैं, हम उन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि ये ट्रेस तनाव होता क्या है। मतलब हमारे सामने जो भी परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति में हमारी मनस्थिति कैसी है, ये तय करती है कि आप मेंटल इलनेस के शिकार है, आप किसी प्रकार के ट्रेस में है या नहीं। मतलब जिस इंसान परिस्थिति और मनस्थिति में संतुलन नहीं कर पाता, हेलो, जो इंसान परिस्थिति और मनस्थिति में संतुलन नहीं कर पाता, वही इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, उसका मन अशांत हो जाता है, उसकी भावनाएं अस्थिर हो जाती है, मन अशांत हो जाता है, भावनाएं अस्थिर हो जाती है और स्वास्थ्य अस्वस्थ हो जाता है, उसकी तंदुरुस्ती कहीं ना कहीं जाने लगती है। तो क्या ऐसा है जो हम करने से ये सारी चीज वापस ला सकते हैं? तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ ऐसे उपाय जरूर बताना चाहूंगा जिसको अपनाने से आप अपने मन के स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमें फिलहाल कोई मानसिक स्वास्थ्य की तकलीफ हो या अभी कोई फिलहाल ट्रेस हो। ये ट्रेस कभी भी किसी को आ सकता है। जैसे अभी जाने सर ने कहा, ट्रेस में बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इट मे बी अ पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जो ट्रेस इंसान को मोटिवेट करता है, हेलो, जो ट्रेस इंसान को मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है, वो पॉजिटिव ट्रेस है। और जो ट्रेस इंसान को डिप्रेशन की ओर, एंजाइटी की ओर, या फिर जीवन में अपने काम करने में असफलता या फिर असमंजसता निर्माण करता है, वो सारा ट्रेस जो है वो निगेटिव ट्रेस है। बट इनसे कैसा करें, क्या करें, तो देखते हैं। सबसे पहले यदि आप देख सकते हैं कि यदि आप आपका काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, यदि आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, यदि आपके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ गया, आप कामों को आगे ढकेल रहे हो, या तो आप किसी जगह पे पड़े रहते हो, लेटे रहते हो, किसी से बात नहीं करते, मुस्कुराते नहीं है, तो ये सारे ट्रेस के, डिप्रेशन के ये शिकार लोग होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, तो बेस्ट ये है कि अपनी प्रॉब्लम्स को किसी और के साथ शेयर कीजिए। कम्युनिकेशन इज द की इन दिस फैक्टर। आपको कम्युनिकेट करना होगा, बातचीत करना होगा। जो भी आपको लग रहा है, जो महसूस कर रहा है, जो भी अंदर चल रहा है, वो एक्सप्रेस कीजिए, बताइए, कम्युनिकेट कीजिए, बातें कीजिए, शेयर कीजिए। सामने बैठ के किसी को बताइए, कोई तो होगा जिसके साथ ये बातें शेयर कर सकते हैं। आप जो उलझन में अटके हैं वो शेयर कीजिए, बात कीजिए। नहीं कोई है तो आप फोन पे किसी से बात कर सकते हो, भी मे भी हो सकता है कोई दोस्त हो, लेकिन किसी व्यक्ति को अपनी समस्या बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक केस आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमारे प्रोफेशन में किसी क्लाइंट का नाम बताना तो हमें अलाउ नहीं करते, बिना नाम बताए मैं उसका आपको एक किस्सा बताता हूँ कि मुझे रात को करीब 12:30 बजे एक फोन आया, एक लेडी का फोन आया, और वो लेडी मुझे कहती कि सर मैं बड़े मुसीबत में हूँ और मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, मैं अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही हूँ, और सोचा कि आपको आखिरी बार फोन कर दूं। अब जब रात को इतने देर में, इतने लेट मुझे ये फोन आता है और वो महिला रो रही है और कुछ बता रही कि वो सुसाइड करने जा रहे हैं, तो मैं अचानक से जाके अपनी नींद से और उनसे बातें करने लगा। और बातें करते मैंने उनको पूछा कि क्या ऐसी वजह और क्या ऐसा कारण है कि आप क्यों मरने जा रहे हो, क्यों आपको जीवित नहीं रहना है। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स में ज्यादा पूछने के बाद रोते हुए, थोड़ा शांत होते हुए उन्होंने काफी मुझे बताया, शेयर किया। एंड मैंने उसके बाद 15 से 20 मिनट जो उनको बातें बताई, वो 15 से 20 मिनट बातों के बाद वो नॉर्मल हो गए, उन्होंने रोना बंद कर दिया। एंड वो लेडी अभी भी है, कुछ ही दिन पहले वो मुझे मिले और हमने बातें की, और मैंने उस दिन आए हुए फोन का जिक्र किया और मैंने उसे पूछा कि मैडम ऐसा तो क्या कारण रहा है, या ऐसा तो मेरी कौन सी बात आपको पसंद आई कि जिसके वजह से उस रात आपने जब फोन किया था, आप सुसाइड करने जा रहे थे, आपने उस विचार को त्याग दिया, छोड़ दिया। मैं जानना चाहता हूं कि मेरा ऐसा कौन सा वाक्य, मेरा ऐसा कौन सा एग्जाम्पल, मेरी ऐसी कौन सी बात है जो आपके अंदर उतर गई और आपने मरने का जो डिसीजन लिया था उसको छोड़ दिया। तो मैडम मुझे कहती है कि सर मैंने जो आपको उस दिन सुना, इसमें से मुझे ज्यादातर कोई बात याद ही नहीं है कि आपने मुझे क्या कहा, बट मैंने सुसाइड करने का डिसीजन इसलिए छोड़ा था क्योंकि काफी लंबे समय के बाद मेरी प्रॉब्लम्स किसी ने पूछ के वो सुनी थी।
आपने बताया तो बाद में, लेकिन आधा पौन घंटा लगातार पहले आप मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या सुन रहे थे, मुझे समझ रहे थे। ये मुझे समझ लेना, मुझे सुन लेना, यही एक चीज थी जो मुझे सुसाइड इस विचार से दूर की। तो ये किसी को सुनना भी हम उसको साइकोलॉजिकल स्टेबल कर सकते हैं। तो आपके आसपास कोई ऐसा है जो नाराज रहता है, उदास रहता है, टेंशन तनाव में रहता है, तो जानिए, उनसे बात कीजिए। हम यदि तनाव में है, टेंशन में है, तो किसी ना किसी के साथ शेयर कीजिए। शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है यारों। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस इंसान ने अपने जिंदगी में हंसना, नाचना, गाना और खेलना, इन 4 चीजों को अपनाया नहीं, उसने जीवन जीना सीखा ही नहीं। कौन सी 4 चीजें? हंसना, गाना, नाचना और खेलना। इन 4 चीजों को जिस इंसान ने अपने जीवन में अपनाया नहीं, उसने जीवन जीना सीखा ही नहीं। तो इन 4 चीजों को हमें अपनाना पड़ेगा। हंसिए। आपने सुना होगा लाफ्टर थेरेपी, जोर जोर से हंसने से हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, हम मेंटली पॉजिटिव होते हैं। हेलो, अभी जो फिलहाल का वातावरण चल रहा है, क्या ज्यादातर हम लोग डरे हुए हैं? ज्यादातर हम न्यूज चैनल देखते हैं, कोरोना की खबरें सुनते हैं। मैं आपको बताना चाहूं, सबसे पहले तो निगेटिव माइंड को हटाने के लिए ये जो न्यूज चैनल है, इसे देखना बंद कीजिए। क्या वो कोई क्रिकेट का स्कोर है जो आप हर दिन देखते हो कि आपके शहर में कितनी और कोरोना के पेशेंट बढ़े? जितने कोरोना के पेशेंट है उससे काफी ज्यादा तो उसमें से ठीक हो रहे हैं। अभी कुछ पॉजिटिव खबरें भी आ रही है, उसको सुनिए। और कुछ ही डेथ रेट जो है इसका काफी कम है, तो उससे ज्यादा डरना नहीं है, उसका सामना करना है। हमें कोरोना ना हो इसके लिए क्या करना है, हमें सरकार ने बता दिया है, उसको फॉलो कीजिए। कीप सेफ डिस्टेंस, आपको दूरी बनाए रखनी है, हाथ धोना है, मास्क लगाना है, अपना ख्याल रखिए। इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो कोरोना से दूर रहेंगे, बच पाएंगे। उसी के साथ साथ यदि हो जाता है तो इलाज भी हो रहा है, काफी सारे ठीक हो रहा है, तो उससे डरना नहीं है। बस इस परिस्थिति में हमें अपनी मनस्थिति को कैसे बेहतर करना, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो जोर जोर से हंसना, आप पूरे 24 घंटे में 5 से 7 मिनट ऐसा निकालिए जहां पर आप खिलखिला के हंस रहे हो। बिना वजह भी हंसा तो भी चलेगा, लेकिन जोर जोर से हंसिए। इससे लाफ्टर थेरेपी, ये आपके मेंटल हेल्थ को बहुत बेहतर रखता है, आपका स्ट्रेस लेवल को काफी ये कम करता है, आपके फिजिकल लेवल में भी ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो जोर जोर से हंसिए। अब आप कहेंगे कि सर बिना वजह कैसे हंसे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफी सारे ऐसे लोग मैंने देखे, काफी सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो बिना वजह रो पाते हैं। कोई कारण नहीं है फिर भी रो पाते हैं। मैं आपको हंसने के लिए कह रहा हूं। तो लोग पुरानी यादों को याद करके रो पाते हैं, तो आप अच्छी यादों को याद करके हंसिए। आपने काफी गार्डन में देखा होगा, लोग हाथ ऊपर करके हंसते हैं, बिकॉज उनको भी पता है कि ये ऐसा मेडिटेशन है। जोर जोर से हंसना ये ऐसा एक मेडिसिन है, ऐसी एक दवाई है जो हमारे शारीरिक और मानसिक हेल्थ को अच्छा रखते हैं। बट लोग इसे जानते हैं, ऐसा नहीं कि नई बार आप सुन रहे हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन लोग अपनाते नहीं है। तो 5 से 7 मिनट 24 घंटे में अपने लिए वक्त निकालिए जहां पर जोर जोर से हंसना है। इसलिए नहीं कि आप ट्रेस में हो, इसलिए कि आप भविष्य में ट्रेस में ना जाए, आप डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी प्रकार के मेंटल हेल्थ के इश्यू में ना अटके, इसलिए ये कीजिए। उसी के साथ साथ आपको नाचना है। डांस इज ऑल्सो थेरेपी। जरूरी नहीं है यारों कि आपको डांस आता हो, बस जैसा भी हो फ्री स्टाइल डांस कीजिए। हो सकता है आपके परिवार के दूसरे सदस्य को आप उसमें शामिल करिए, अकेले नाचिए, लेकिन नाचिए। 7-8 मिनट आपका डांस ये आपके माइंड को बहुत अच्छे से रिफ्रेश कर देता है। तो डांस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड थेरेपी। तो मैंने लाफ्टर थेरेपी की बात की है, मैंने डांस थेरेपी की बात कीजिए। खेलना यह भी एक थेरेपी का काम करते हैं। वो आपको जो पसंद खेल है तो उस खेल के लिए समय निकालिए। मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी बड़े लोग हैं उनके घर में छोटे बच्चे होंगे, छोटे बच्चों के साथ खेलिए, छोटे बच्चों के साथ बच्चा बन के खेलिए। अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दीजिए, अपने अंदर के छोटे बच्चों को बाहर निकालिए, छोटे बच्चे के साथ खेलिए, बच्चों के साथ बच्चा होके खेलिए। देखिए जब आप खेलते हो तब सारे टेंशन, तनाव, तकलीफें, प्रॉब्लम को आप भूल जाते हो और अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए बहुत अच्छा एक थेरेपी है गेम थेरेपी। तो आप खेलिए, कोई भी खेल हो, इंडोर गेम हो, आउटडोर गेम हो, जैसा भी आप खेल सकते हो, कोई ना कोई खेल आपको खेलना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। नाचना, गाना और खेलना। मैंने हंसने की बात कही है, मैंने नाचने की बात की है, मैंने खेलने की बात कही है यारो।
हंसना, गाना, नाचना और खेलना। आपको गाना गाना पड़ेगा, म्यूजिक के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी, आपको ऐसे कुछ सॉन्ग आप सुनिए, इट्स कॉल्ड एज अ म्यूजिक थेरेपी। तो आप ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए, कोई अच्छे विचार वाले गाने सुनिए, ऐसा म्यूजिक सुनिए जो आपको रिफ्रेश कर देता हो, जो आपके मूड को अच्छा करते हो। उदास सैड सॉन्ग नहीं सुनना है, बेहतरीन अच्छे गाने सुनिए, वो भी आपके मेंटल स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। और आज तो पहले से ज्यादा ऐसे संसाधन आ चुके हैं जिसका हम इस्तेमाल करके गाना सुन सकते हैं, तो ये सारी चीज करनी होगी, आपको हंसना होगा। हाँ, वैसे मैं बताऊं कि मैं हंसने की बात कर रहा हूं, कुछ लोग प्रॉब्लम्स को याद करके रोते हैं, और यदि आपकी भावनाएं ऐसी है कि आपको रोना आ रहा है किसी चीज को याद करके, या कोई दुख या कोई प्रॉब्लम है, तो बिंदास रोइए। अपना प्रॉब्लम ये भी है कि लोग अपने भावनाओं को खुल के एक्सप्रेस ही नहीं करते। जब बहुत ज्यादा हंसने का समय तब खिल के हंसते नहीं है, और जब रोने का समय तब रोते भी नहीं है, अपने भावनाओं को दबा के रखते हैं। तो अपने भावनाओं को दबा के मत रखिए। देखिए, हमको समझना होगा कि हर इंसान के कुछ पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, उसी प्रकार से निगेटिव इमोशंस भी होते हैं। निगेटिव इमोशंस आल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वो होते हैं। हमारे माँ बाप, हमारे टीचर हमें कभी नहीं सिखाए कि अपने इमोशंस को मैनेज कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है। तो निगेटिव इमोशंस है, कभी गुस्सा आ रहा है वो जाहिर करना भी जरूरी है, कभी रोना आ रहा है वो रोना भी जरूरी है। लेकिन यहां पर एक बात समझ लीजिए कि रोना बुरा नहीं है, रोना बुरा नहीं है, लेकिन रोते रहना बुरा है। कुछ लोग तो केवल रोते ही रहते हैं, पूरी जिंदगी रोते नहीं रहना है। एक आध बार भावनाएं उमड़ पड़ती है और रोने की इच्छा हो रही है, खुल के रोइए, इट्स गुड। आपको रोने के बाद अच्छा महसूस होगा, किसी के सामने शेयर करते हुए आप रो रहे हो, रोइए, अच्छी बात है। बट हर बार उसी को याद करते रोना, रोते रहना, ये गलत है। रोना बुरा नहीं है, रोते रहना बुरा है। मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहता हूं, ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा। फॉर्मूला क्या है? ज्यादातर हमारे जहन में एक डायलॉग फिट किया हुआ है, और वो है टेंशन से रिलेटेड। क्या है वो? टेंशन लेने का नहीं। हेलो, क्या बोलते हैं? मैं भले ही नहीं सुन पाऊं, लेकिन आप मन ही मन या फिर मुंह से जोर से बोल सकते हो कि आपने ये सुना है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन यस देने का। हाँ हाँ, मैं आपकी भावना समझ रहा हूं कि ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ये जो टेंशन देने का वाले लोग हैं ना, ये टेंशन दूसरों को देते रहते हैं। ये ऐसे जितने भी लोग हैं जो दूसरों को टेंशन देते हैं, ऐसे टेंशन देने वाले लोगों से अपने आप को बचा के रखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको नया फॉर्मूला देना चाहता हूं अपने माइंड का न्यू प्रोग्रामिंग करने के लिए, नया वाक्य, नया डायलॉग, नया स्टेटमेंट देना चाहता हूं। मेरे साथ आपको दोहराना है, भले मैं ना सुन पाऊं, नहीं देख पाऊं आपको, लेकिन आपको दोहराना है वहां मुझे सुनते सुनते। मुझे एक्टिवली पार्टिसिपेशन चाहिए आपका इस वेबिनार में। ना ही टेंशन लेने का, ना ही टेंशन देने का, टेंशन को मैनेज करने का। हेलो, फिर से एक बार सभी लोग दोहराएंगे मेरे साथ। ना ही टेंशन लेने का, ना ही टेंशन देने का, टेंशन को मैनेज करने का। जिस इंसान ने अपने टेंशन को, तनाव को मैनेज करना सीख लिया, वही सफल और बेहतर जिंदगी जी सकता है। तो अपने टेंशन को मैनेज करना सीखिए। ना ही टेंशन लेना है यारो, ना ही किसी और को टेंशन देना है। टेंशन को, हेलो, टेंशन को यस मैनेज करना है। तो हमें टेंशन को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। बट फिर से एक सवाल आता है कि सर बताइए हाउ, कैसे कैसे हम अपने टेंशन को मैनेज कर पाए? तो मैं आपको फॉर्मूला देता हूं। सुबह उठते ही आपको सिर्फ 1 घंटा ऐसा कुछ करना है, 1 घंटा ऐसा कुछ करना है जिससे आप बचे हुए 23 घंटे में पॉजिटिव सोच रख सकते हो, अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हो। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारा शरीर और हमारा मन दोनों इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप सुबह उठते ही, मैं जिसको फॉर्मूला बोलता हूं, वो फॉर्मूला है आवर ऑफ हवर, आवर ऑफ पावर। शक्ति का ऐसा 1 घंटा जो सुबह उठते ही आपको 1 घंटा केवल ऐसा देना है जिसके द्वारा बचे हुए 23 घंटे में आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। और उसमें करना क्या है मैं बताना चाहूंगा। जैसे आप नींद से जागते हो, सबसे पहले आपको 20 मिनट्स मेडिटेशन करना है, ध्यान। काफी सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। मेडिटेशन करना यानी कुछ न करना, बस बैठे रहिए, शांत हो जाइए, अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आइए और आंखें बंद रखिए। ये
उतने समय के लिए अपने मन को ऑफ कर देता है। मतलब काफी सारे लोगों की यह समस्या होती है कि वो मेडिटेशन करते हैं, उसी वक्त अलग अलग प्रकार के विचार आना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेडिटेशन करते रहिए, ये विचार भी धीरे धीरे आना कम हो जाएगा और आप मेडिटेट हो पाओगे। पहले करना क्या है, जब आप शांत बैठ जाते हो किसी एक जगह पर मेडिटेशन ध्यान करने के लिए, तब आपको अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। अपना पूरा लक्ष्य अपनी सांसों पर लाइए, फोकस ऑन योर ब्रीथिंग। जब आप ऐसा करते हो तो मुझे बहुत सारे अपने दिमाग में विचार घूम रहे हैं, कई सारे विचार घूम रहे हैं, मेनी से आप सांसों पर ध्यान देते ही वो वन पर आ जाएंगे, मेनी टू वन। और ये वन, एक विचार पर आना, सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, कुछ समय के बाद आपको एक ऐसी अवस्था में ला सकता है जिसको बोला जाता है 1 to none, यानी किसी भी विचार रहित आपकी मन की स्थिति हो जाती है। मेनी टू वन, 1 to none, इस प्रकार से आप मेडिटेशन कीजिए। केवल 20 मिनट हर दिन, सुबह उठते ही 20 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। वो हो जाए तो उसके बाद आपको 20 मिनट पॉजिटिव कोई भी अच्छी मोटिवेशनल किताब पढ़ना है। वो फिजिकल बुक हो, मोबाइल से पढ़ना नहीं है, व्हाट्सएप के मैसेज नहीं। मैं बोल रहा हूं कि कोई तो भी बुक लीजिए जो रात को सोने से पहले ही अपने पास रख दीजिए साइड में, बगल में, उठते ही उसी जगह पर 20 मिनट, नॉट मोर देन 20 मिनट, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल 20 मिनट आपको कोई ना कोई किताब जो है वो पढ़िए। वो किसी भी विषय की हो सकती है, जैसे मेरे पास यहाँ पर माइंड पावर है, पॉजिटिव थिंकिंग, वो कोई भी हो सकती है। 20 मिनट हो सकता है, 7-8 पन्ने आप वो उस 20 मिनट में पढ़े, उस 20 मिनट आपको पढ़ना है। उसके बाद के जो 20 मिनट है, उस 20 मिनट में आपको ऐसा कुछ करना है जिससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाए। मतलब हो सकता है वो एक्सरसाइज हो, स्ट्रेचिंग हो, या जंपिंग हो, डांसिंग हो, ऐसा कुछ भी कीजिए। बस उसमें शर्त है कि आपके हार्ट के बीट्स बढ़ने चाहिए, हार्ट बीट्स तेज होने चाहिए। जब आपके हार्ट बीट्स तेज हो जाते हैं यारों, तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से फैलने लगता है। और फिर ये तीन चीजें सही 20-20 मिनट, ऐसे 60 मिनट आप हर दिन करते हो, तो बचे 23 मिनट में 23 घंटे में आप पॉजिटिव रह सकते हो। और इसको मैंने बोला है आवर ऑफ पावर। मतलब ये पावर के लिए दिन भर में यारों 24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए देना, मतलब वो मैक्सिमम 4% होता है। क्या आप शरीर के और मन के स्वास्थ्य के लिए 4% समय नहीं दे पाते हो? और जो लोग इसके लिए समय नहीं निकालते ना, फिर अपना शरीर और अपना मन कोई तो भी बड़ी बीमारी दे देता है, फिर बाद में अस्पताल में एडमिट रहना पड़ता है, और फिर तो हमें समय ही समय मिल जाता है। तो बेहतर है हम कोई बीमार ना हो। इसलिए क्या किया जा सकता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यारो आज कोरोना से जितने लोग पीड़ित नहीं है, उससे ज्यादा कोरोना लोगों के मन को हुआ है। हेलो, लोगों को मन को बहुत ज्यादा कोरोना हुआ है। काफी सारे लोग कोरोना होने के वजह से नहीं मरेंगे, लेकिन कोरोना हो जाएगा, हो गया तो ठीक होगे कि नहीं, ये जो मन में शक, सवाल, डाउट आया है, ये जो डर मन में आया है, इसके वजह से मरने वालों की संख्या भी काफी है। ऐसा ना हो कि कोरोना शरीर को नहीं, किसी के मन को लग जाए। डर से बाहर आइए, फेस योर फियर, आपके डर का सामना कीजिए। योर फियर नेवर फेस टू यू। जब आप डर का सामना करते हैं, आपका डर आपके सामने कभी भी आता नहीं है। भले ये सिचुएशन पूरे दुनिया के लिए बड़ी अजीब सी नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी सफल लोग हैं, उनके जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। मैं एक जिम्मेदारी पूर्वक ये वाक्य कह रहा हूं, मैं मेरे वाक्य को दोहराता हूं, आप जरूर ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी सफल लोग हैं, उनके जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आती। आप कह रहे होगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। जितने भी सफल लोग होते हैं, उनके जिंदगी में जो परिस्थिति आती है, वो प्रॉब्लम नहीं, वो उसे चैलेंज समझते हैं। वो क्या समझते हैं? वो प्रॉब्लम नहीं है, वो चैलेंज है। क्या फर्क है प्रॉब्लम और चैलेंज में? परिस्थिति सेम है। जब इंसान उस परिस्थिति को प्रॉब्लम, समस्या समझता है, तब वो हाथ पैर ठंडे करके बैठ जाता है। ये प्रॉब्लम आया, अब मैं क्या करूं? लेकिन जो इंसान परिस्थिति को, वो बुरी से बुरी परिस्थिति को जब चैलेंज समझता है, वो चुनौती समझता है, तो वो उससे
लड़ने के लिए डटे हुए खड़ा होता है, तैयार होता है। आज के इस घड़ी में आपके जिंदगी में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव होगा, किसी भी प्रकार का मेंटल हेलनेस होगा, तो आपको बताना चाहता हूं, ये मौका चिंता करने का नहीं है, ये समय चिंता करने का नहीं है, ये समय चिंतन करने का है। चिंता नहीं, चिंतन करना शुरू कीजिए। थोड़ा सा सोचिए, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाइए दोस्तों। आपकी कोई हॉबी होगी, उसके लिए समय निकालिए, बहुत जरूरी है। हो सकता है किसी को गार्डनिंग पसंद है, पेड़ पौधों के साथ समय बिताइए। इवन हम तो सजेस्ट करते हैं कि जो इंसान पेड़ पौधों के साथ ज्यादा जुड़ाव रखता है, वो पौधों के साथ, पेड़ों के साथ बात कर सकता है, उनको भी शेयर कर सकता है। आपके घर में कोई पेट एनिमल हो गए, पालतू जानवर हो गए, तो उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ बातें कीजिए, शेयर कीजिए। लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग, उसके साथ भी इमोशंस शेयर करना काफी हद तक हमको बेहतर फील कराता है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक सकारात्मक वातावरण में रहे। अपने आसपास का वातावरण पॉजिटिव रखिए। आपके पास अच्छी अच्छी किताब होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव बोलने वाले ऐसे दोस्त होने चाहिए। घर का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यारो घर में किसी एक का मानसिक स्वास्थ्य जब खराब होता है ना, वो पूरे घर के लोगों का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर देता है। उसका गुस्सा, उसका चिड़चिड़, ये सारा वो घर में बाकी सदस्य के साथ करता है और बाकी सारे के घर के सारे सदस्य डिस्टर्ब होते हैं। इसमें सीवियर किस्म के मेंटल इलनेस है और बाइपोलर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतने सीवियर नहीं होते, लेकिन हर बड़े मानसिक बीमारी की शुरुआत छोटे से ही होती है। तो समय पे समझिए अपने मानसिक स्वास्थ्य को। इसके लिए मैं कुछ थेरेपी आपको रिकमेंड करता हूं कि जैसे बोलते बोलते मैंने बताया, डांस थेरेपी, लाफ्टर थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, गेम थेरेपी, ये ऑल जो मैंने बोला है ना, ये थेरेपी है। ये थेरेपी को आपको अपनाना पड़ेगा। अनदर थेरेपी आई डिस्कस विथ यू, और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है स्पिरिचुअल मेथड या स्पिरिचुअल थेरेपी। मैं धार्मिक होने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आध्यात्मिक होने के लिए कह रहा हूं। ये बहुत जरूरी है। धार्मिकता और आध्यात्मिकता में फर्क है। जो इंसान आध्यात्मिक होता है, वो मन का पीस, जो मेंटल पीस है, उसको अचीव कर पाता है। तो कहीं ना कहीं बिलीविंग ऑन गॉड, ये जरूरी नहीं कि आप कौन से भगवान को मानते हो, किसी भी भगवान को मानना, किसी ना किसी सुप्रीम शक्ति को मानना बहुत हेल्प करता है कि हाँ, कहीं ना कहीं इस बुरी परिस्थिति से हम बाहर आ जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे प्रॉब्लम्स आने वाले समय पर सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है यारो, दुनिया के हर समस्या का समाधान वो अध्यात्मता में है। देयर इज सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम इन स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता में हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा, उसका जवाब आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। बिलीविंग ऑन गॉड, गॉड पर विश्वास रखना पड़ेगा। सब कुछ भविष्य में ठीक हो जाएगा, यह मानना पड़ेगा, ये सोच रखनी पड़ेगी। ये हमारे अंदर की जगाता है, ये हमारे मन की शांति को और हमें प्राप्त करके देता है। और मन शांत रख पाना, यही तो सबसे बड़ा चैलेंज आजकल है। अपने बच्चों को जरूर सिखाइए, जो मुझे बड़े लोग सुन रहे हैं मैं उनको बताना चाहूंगा, अपने बच्चों को जरूर सिखाइए कि अपने भावनाओं को मैनेज कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, भावनाओं को व्यक्त कैसे करना है। काफी सारे बच्चे आजकल के अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, वो भी अपने अलग अलग प्रकार के इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो उनको सिखाइए कि हर इंसान के अंदर पॉजिटिव निगेटिव इमोशंस होते हैं, उसे सही तरीके से एक्सप्रेस करना है, अपने नकारात्मक इमोशंस को चैनलाइज करना है, उसकी दिशा बदल के अपने जीवन को बेहतर करने के लिए उसे इस्तेमाल करना है। जब मैं स्पिरिचुअल मेथड की बात कर रहा हूं तो आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने गॉड ये शब्द सुना है? यस, GOD, गॉड। हमने हिंदू माइथोलॉजी में 3 शब्द सुने हैं भगवान के, और वह है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जो ब्रह्मा होते हैं वो कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण करता है। मतलब क्या? ये सृष्टि के जनरेटर, जी स्टैंड फॉर जनरेटर, सृष्टि का निर्माण किया है। दूसरे है विष्णु, जो इस सृष्टि का पालन करते हैं, पालनहर्ता। विष्णु के हमने कई सारे अवतार सुने जो सृष्टि को, निसर्ग को, नेचर को, धरती को संभालते हैं। मतलब क्या? ऑपरेट करते हैं। ओ स्टैंड फॉर ऑपरेटर, जी जनरेटर, कौन? ब्रह्मा, विष्णु ऑपरेटर, और तीसरे है महेश, यानी शंकर, महेश, वो
तबाह करते हैं, वो विनाश करते हैं। तीसरा नेत्र नेत्र खोल देते हैं, मतलब डिस्ट्रॉयर। GOD, जी जनरेटर, O ऑपरेटर, D डिस्ट्रॉयर। मैंने आज दिन तक ब्रह्मा और विष्णु के संतानों के बारे में नहीं सुना, लेकिन मैंने महेश के संतानों के बारे में, शंकर भगवान के बच्चों के बारे में सुना है। दो, एक कार्तिक स्वामी और दूसरे यस श्री गणेश। जहां जहां महेश यानी जहां जहां विनाश, वहीं पर श्री गणेश यानी नए चीज की शुरुआत होती है। जहां जहां विध्वंस और विनाश होता है, वहीं तो सृजन होता है, नया क्रिएशन होता है। तो यदि ये कोरोना का संकट आया है और इससे कुछ कदम देश पीछे आया होगा, कुछ ना कुछ हानि हुई है, मत घबराइए। जहां जहां विनाश, वहीं पर नए चीज की शुरुआत होती है। तो यहां से भी कुछ बेहतर होगा। इस कोरोना के वजह से टेक्नोलॉजी में हमने जो इस्तेमाल पिछले 2-3 महीने में बढ़ा दिया है, जो पिछले 30 सालों में नहीं आया था, वो 2 से 3 महीने में ला दिया है। ऑनलाइन क्लासेस लेना, उसके बारे में सोचना, ये सारी चीज हो रही है। जिन्होंने कभी इस प्रकार के वेबिनार्स नहीं किए थे, वो वेबिनार्स के बारे में जान रहे हैं, अलग अलग चीजें पता चल रही है, लोग सोच रहे हैं उसके बारे में, लोग सीख रहे हैं। तो ये सारा जो है ये अच्छा ही है। इससे हमें ये भी पता चला कि हमारे देश की जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिकार शक्ति, वो बेहतर है। क्योंकि जितना अफेक्ट कोरोना दूसरे देशों को किया है, उतनी हानि अपने भारत देश की नहीं हुई है। इससे हमें ये भी पता चला है कि कहीं ना कहीं भारत देश को अपने हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस कोरोना के वजह से वो हेल्थ सेक्टर बेहतर हुआ है। देखिए, हम चाहे तो हर नकारात्मक परिस्थिति में से भी कुछ पॉजिटिव सोच निकाल सकते हैं। बस वो पॉजिटिव नजरिया तो होना चाहिए। वो देखेंगे तो हमारी मानसिक स्वास्थ्य, हमारी मेंटालिटी बेहतर रहेगी यारो। तो ये सारी चीज हमें करनी है। तो मैं जरूर रिकमेंड करता हूँ स्पिरिचुअल थेरेपी, स्पिरिचुअल मेथड को आप जरूर अपनाइए। और उसमें मैं बेहतर तरीके से ये बताना चाहूंगा कि दिन में एक बार आप समय निकालिए कि कुछ ना कुछ आप हाथ जोड़ के या जैसा भी आपको लगे, आंख बंद करके प्रेयर कीजिए। प्रेयर इज गुड फॉर गुड मेंटल हेल्थ। आपको अपना मेंटल हेल्थ अच्छा रखना है तो प्रेयर करना, प्रार्थना करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जानता हूं ये सारी चीजें आप जानते हो, बट मैंने कहा हम वो नहीं है जो हम जानते हैं। हम वो नहीं है जो हम जानते हैं, हम वही है जो हम करके दिखाते हैं। यारो, हम जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन अपनाते बहुत कम है। और मैं उसी लिए आया हूं कि मैं चाहता हूं कि आप जो जानते हो उसे धीरे धीरे अपनाना शुरू कीजिए। ये बहुत अच्छा है। जब आप इसे अपनाएंगे, आप बेहतर चीजें अपनाएंगे, आपका परिवार धीरे धीरे आपके साथ ये सारी चीजें अपनाना शुरू करेगा। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का, और जिस जगह पर आप काम करते हैं उस जगह का, उस माहौल का वातावरण अच्छा रहेगा। वो एक फ्रेश वातावरण रहेगा और आप सभी लोग एक अच्छे वातावरण में अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रख पाएंगे। जैसे भी हम अलग अलग चीजों की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने बात की थी कि असंतुलन यानी क्या, अपने परिस्थिति में और अपने मनस्थिति में असंतुलन, यानी हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, परिस्थिति और यस मनस्थिति, इसमें असंतुलन आना मतलब कहीं ना कहीं ये मेंटल लेवल पर इनबैलेंस है। इसके काफी सारे कारण हैं। किसी का निगेटिव अप्रोच हो सकता है, बाहर की परिस्थिति हो सकती है, काफी कभी कभी ये जेनेटिक भी होता है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी होता है। इसके कई सारे कारण है, बट इस कारण का हमें मार्ग निकालना पड़ेगा, इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। यदि कोई सीवियर किस्म के किसी प्रकार के मेंटल इलनेस में है तो किसी का थर्ड पर्सन की हेल्प लेनी पड़ेगी, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा। जब जरूरत है मेंटल इलनेस की बात करें तो वहां पर जहां दवाई लेने की जरूरत है जरूर दवाई लीजिए। एंटी डिप्रेशन पीलिया बहुत सारी आती है, तो आप डॉक्टर के सलाह से दवाई लीजिए। इससे भी मेंटल हेल्थ काफी अच्छा होता है। काउंसलिंग ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। काउंसलिंग, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, इट्स ऑल्सो वन टाइप ऑफ काउंसलिंग जो आप सुन रहे हो। काउंसलिंग को मैं मेरी भाषा में कहूं तो काउंसलिंग इज अ मेडिसिन ऑफ वर्ड्स। शब्दों की दवाई होती है काउंसलिंग, समुपदेशन। जब कोई तीसरा व्यक्ति आपकी समस्या जान के आपको कुछ कहता है, कई रास्ते आपको देता है, सुझाव देता है, तो उससे आपका मेंटल हेल्थ धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि किसका मानसिक स्वास्थ्य कितना बिगड़ा है और उसको कितने हद तक, वो कितने सेशंस उसको काउंसलिंग देना पड़ेगा। बट ये काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये टेंशन,
स्ट्रेस की वजह से काफी सारे लोग किसी न किसी प्रकार की नशे में अटक जाते हैं, उनका नशा बढ़ जाता है, और ये नशे का कारण भी कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस ही है। हमें समझना पड़ेगा कि कहीं नशा बढ़ गया, नशा शुरू हो गया और बहुत ज्यादा नशे में कोई इंसान है, इसका कारण भी स्ट्रेस है। बहुत सारे नुकसान है स्ट्रेस के, लेकिन इस स्ट्रेस से बाहर कैसे आना, अपनी जिंदगी सफल कैसे करना, ये हमको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। थोड़ा सा इसके बारे में खुद को और किसी और को अवेयर करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप इन सारी चीजों की जब बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, बाहर की जो परिस्थिति होती है, हेलो, बाहर की जो परिस्थिति होती है, ये परिस्थिति इंसान के कंट्रोल में नहीं है। ज्यादातर परिस्थिति इंसान के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति में हमारे अंदर क्या हो रहा है ये हमारे कंट्रोल में है। यदि किसी का नुकसान हुआ है, कोई फेलियर आ गया है, कोई असफलता आ गई है, तो हमें समझना है कि वो फेलियर, वो असफलता बाहर की दुनिया में है, वो फेलियर, वो असफलता बाहर की दुनिया में है। जब वो फेलियर, वो असफलता अपने अंदर की दुनिया में, हेलो, अपने अंदर की दुनिया में आ जाता है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आपको समझना है, जो भी असफलता, जो भी फेलियर, जो भी प्रॉब्लम आया है, उसको बाहर की दुनिया में रखिए। जब वो अंदर की दुनिया में आ जाता है तो वो मेंटल इलनेस की ओर लेकर जाता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ता है, हमारे स्ट्रेस को बिगाड़ता है। और वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं काफी देर से कि आपको आपके स्ट्रेस को, आपके मानसिक इस इलनेस को मैनेज करना, व्यवस्थापन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भावनाओं का व्यवस्थापन, अपने मन के विचारों का व्यवस्थापन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 चीजों में संतुलन होना चाहिए, मेरे साथ आपको दोहराना है, 3 चीजों में संतुलन होना चाहिए, अपना काम, आराम और व्यायाम। हेलो, कौन सी 3 चीजें बताई मैंने? काम, आराम और व्यायाम। इन 3 चीजों में संतुलन रखिए, तो देखिए आप बेहतर तरीके से अपने जिंदगी का आनंद लेके अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को आप पूरा जरूर कर सकते हो, स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। और किसी वजह से स्ट्रेस आया भी तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। हमारे मस्तिष्क की स्ट्रेस को झेलने की क्षमता है, हर किसी के अलग अलग है। मानो मेरे हाथ में कोई रबर बैंड है, हेलो देखिए, मानो अभी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन देखिए मन की आंखों से कि मेरे हाथ में कोई रबर बैंड है, इसको मैं खींचते जाऊंगा, इस रबर बैंड की कोई लिमिट है कि मैं इसको कब तक खींचता जाऊं। ज्यादा ही यदि इसको खींचता जाऊंगा तो या तो वो हाथ से छूट जाएगा या तो टूट जाएगा। रबर बैंड को उसकी क्षमता से ज्यादा मैं तनाव दूंगा, खींचूंगा, तो या तो वो टूट जाएगा या तो वो छूट जाएगा। ऐसा ही होता है हमारे मस्तिष्क के साथ, हर किसी के मस्तिष्क की तनाव झेलने की एक क्षमता होती है। रबर बैंड का एग्जांपल याद रखिए, हर प्रकार के मस्तिष्क की एक क्षमता होती है, वो क्षमता उतना वो स्ट्रेस झेल सकती है। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करना चाहता हूं यारो कि कहीं ना कहीं हमें अपने तनाव को झेलने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि तनाव, स्ट्रेस, यह जिंदगी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, वो तो आएगा ही। बस उसको झेलने की उसकी क्षमता को बढ़ाइए, अपने मानसिकता को इतना स्ट्रांग रखिए। काफी सारे बच्चे एग्जाम के वजह से डर जाते हैं, किसी प्रकार की वजह से वो टेंशन ले लेते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, बाहर की परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, हमें अपनी साइकोलॉजी इतनी बड़ी रखनी है ताकि बाहर की परिस्थिति हमको छोटी लगे। एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आपने ये सुना होगा कि रामायण के दौरान ऐसा कुछ हुआ था कि जब राम, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना हनुमान के साथ सीता मैया को लाने के लिए श्रीलंका गए थे और रावण से युद्ध चल रहा था, और उस युद्ध में बाण लगकर लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। और तब उनको होश में लाने के लिए वैद्य ने कहा कि इनको संजीवनी बूटी देना पड़ेगा, और संजीवनी मिलती कहां पर? हिमालय पर। फिर वहां जाके कम समय में कौन ला पाएगा? तो एक ही व्यक्ति थे, यस, जो आपके जहन में आया है नाम, वही है हनुमान जी। हनुमान जी को जिम्मेदारी सौंपी गई। हनुमान जी उड़ पाते थे, उड़ के वहां पर गए। वहां पर जाने पर देखा क्या? उन्होंने संजीवनी बूटी, ये तो कभी देखा ही नहीं था, उनको पता ही नहीं संजीवनी वाला पेड़ कौन सा है। अब उनके सामने बड़ा सा पहाड़ है और वो देख रहे हैं, क्या करें? उस वक्त फोन भी तो नहीं था कि फोन करके पूछ ले। जब वो बड़े से पहाड़ के सामने खड़े थे, वो बड़ा सा पहाड़ उस हनुमान जी के लिए एक बड़ी सी समस्या थी। उन्होंने
किया कुछ ऐसे कि धीरे धीरे अपने साइज को बड़ा कर दिया, अपने धीरे धीरे साइज को बड़ा कर दिया, अपने शेप को, अपने आकार को बड़ा कर दिया, और वो इतने बड़े साइज में हो गए। तब वो जो पहाड़ था बड़ा सा, जो समस्या उनके सामने थी, वो पहाड़ छोटा हो गया, और उन्होंने वो पूरा का पूरा पहाड़ अपने हाथ पर उठाकर लेकर आए। मानो दवाई कौन सी है पता नहीं है, तो पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर लेकर आए। यहां पर हमको इतना ही सीखना है, समझना है कि उस हनुमान जी के पास सामने वो बड़ा सा पहाड़, यदि बड़ी सी समस्या थी, उन्होंने अपने आप को बड़ा किया, वो बड़ा सा पहाड़ छोटा हो गया। आपके सामने यदि कोई प्रॉब्लम वो बहुत बड़ी होगी, तो हमें अपनी साइकोलॉजी को इतना बड़ा कर देना है ताकि वो समस्या अपने सामने छोटी हो जाए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि समस्या लेवल 8 पर है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि समस्या प्रॉब्लम 8 पर है, प्रॉब्लम यह है कि हम साइकोलॉजिकल लेवल पर लेवल 4 पर है। अब साइकोलॉजिकल लेवल 4 पर रहकर हम 8 लेवल के प्रॉब्लम को संभाल नहीं पाएंगे, ट्रेस आएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो प्रॉब्लम 8 पर प्रॉब्लम है, लेवल 8 पर प्रॉब्लम है, ये यदि छोटी लगने लगे, कब? जब अपनी साइकोलॉजी को हम लेवल 10 पे रख दे, अपनी साइकोलॉजी को इतना हाई कर दे, अपने साइकोलॉजी को, अपने सोच और विचार और नजरिए को इतना बड़ा कर दे कि जिस नजरिए से आप देखोगे वो बड़ी सी बड़ी समस्या आपके सामने छोटी हो जाएगी। और मैंने तो आपको कहा है, समस्या को समस्या नहीं, आज के बाद चैलेंज बोलना शुरू कर दीजिए, चुनौती के साथ उसका सामना कीजिए, तभी हम उससे बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। और इसके लिए बेस्ट मैं आपको एक वाक्य बताता हूं। तो अपने अंदर साइकोलॉजी को बड़ा करने के लिए एक चीज को अपनाना पड़ेगा, और उसको मैं बोलता हूं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। ज्यादातर लोग बदले हुए परिस्थिति को स्वीकार ही नहीं कर पाते। देखिए, ये बात तो पक्की है कि हर व्यक्ति वैसा आपके साथ बर्ताव नहीं करेगा जैसा आप चाहते हो, हर परिस्थिति हमेशा वैसी नहीं होगी जैसा आप चाहते हो, हर सिचुएशन आप जैसा चाहते हो वैसा कभी नहीं होने वाला है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, टेंशन क्यों लेते हो? जो भी बदली हुई व्यक्ति है, वो भी परिस्थिति है, जो भी सिचुएशन है, वो जो कुछ भी है, स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट इट। जितने जल्दी आप चेंज को, बदलाव को एक्सेप्ट करेंगे, उतने ही जल्दी उस बदलाव का सामना कर से, उससे उभर के आप बाहर आने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये समझना, ये अंडरस्टैंडिंग रखना, ये साइकोलॉजी उस प्रकार के बना के रखना, इस प्रकार का एटीट्यूड और नजरिया रखना, ये आपको उस साइकोलॉजी को हाई कर देता है। फिर आपको किसी चीज का स्ट्रेस, तनाव नहीं आएगा। ये चीज करना होगा। मैं आपको जरूर रिकमेंड करता हूं कि आपके अंदर कोई कला होगा, कोई आर्ट होगा, तो उसको बाहर निकालिए, सही मौका है। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होगी, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को पेंटिंग करना पसंद है, कोई ना कोई तो ऐसी क्वालिटीज आपके अंदर होगी, उसको डेवलप कीजिए, उसको शार्प कीजिए, कुछ नया सीखिए, नई किताबें पढ़िए, रीडिंग, अच्छी किताबें पढ़िए। आपको लिखने का शौक है, किसी को कविताएं, पोएम लिखने की हॉबी है, तो उसको बरकरार रखिए, कोई बुक लिखिए। मैंने तो काफी सारे ऐसे जिनकी एज करीब 60 के पार हुई है और जो टेंशन तनाव में, मैंने उनको रिकमेंड किया था और उन्होंने अच्छी शुरुआत की है कि उन्होंने जब उम्र के 60 के करीब आ रहे हैं, मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप आपके पूरी जिंदगी को याद करके लिखना शुरू कर दीजिए। और उन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान लिखना शुरू कर दिया। और मैं आपको कहूं कि उनकी लगभग इन लॉकडाउन के छुट्टियों के दौरान खुद की ऑटोबायोग्राफी, आत्मचरित्र लगभग लिख के कंप्लीट हो गया है। सोचो कितनी बड़ी बात है। इस सिचुएशन भी उनको एक ऐसा टास्क मिला जो अपनी पुरानी पूरी जिंदगी को याद करके लिख पाए, और उस किताब के माध्यम से वो जरूर अपनी जिंदगी को, उस जिंदगी के सीख को, उस तजुर्बे को वो दुनिया के सामने, लोगों के सामने रख पाए। ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसको आप सही समय पे यदि कुछ करोगे, अपनाओगे, तो बदलाव होगा। देखो, वही आप करते रहोगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। वही करते रहोगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। कुछ अलग जीवन में चाहिए तो कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग चीजों को अपनाना पड़ेगा। तो आपके अंदर कोई भी कला हो, कोई भी आर्ट हो, उसको बाहर निकालिए, उसको दुनिया के सामने लाइए, अपने स्किल को डेवलप कीजिए। मैं हमेशा मेरे पार्टिसिपेंट, मेरे क्लाइंट, मेरे पेशेंट को हमेशा कहता हूं कि हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बस अपने सोचने के पैटर्न्स को बदलना है। हेलो, मेरे साथ आपको करना है ताकि ये बात याद रहे, अपने को अपने सोचने के क्या बदलना है, पैटर्न्स।
तौर तरीके को बदलना है। जिस वक्त जिस क्षण इंसान ने अपने सोचने के तौर तरीके में बदलाव ला दिया, काफी सारे समस्याओं से वो वैसे ही हट जाता है। जिंदगी में कोई भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान होता है। मैं आपको बताऊं कि हर समस्या का समाधान होता है, आज नहीं तो कल होता है। हर समस्या का समाधान होता है, आज नहीं तो कल होता है। इस वाक्य को आप लिख के रखिए, याद रखिए। हर समस्या का समाधान होता है, आज नहीं तो कल होता है। तो अपने अंदर धैर्य, पेशेंस को बढ़ाना ये बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा पेशेंस को बढ़ाइए, धैर्य धीरज को बढ़ाइए, इससे समय के साथ साथ समस्या दूर हो जाती है। अब कोई भी समस्या होगी ना, कोई भी चैलेंज आपके सामने होगा, तो हर चैलेंज ये 4 तरीके से दूर होता है। इस चीज को आप समझ लो, काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाओगे। पहला कि कोई भी समस्या सॉल्व होती है, कोई समस्या ऐसी होती है जो पैसों से सॉल्व होती है, तो आपके पास पैसा है तो उससे सॉल्व कीजिए। यदि पैसा नहीं है और वो पैसे से सॉल्व होने वाली समस्या नहीं है, तो उसके लिए दूसरा है, वो है पीपल, लोग। किसी व्यक्ति की, किसी रिश्ते की आप मदद लीजिए, टेक हेल्प ऑफ थर्ड पर्सन, तीसरे व्यक्ति की। मतलब क्या, समस्या से जूझने के लिए कभी पैसा उस समस्या से आपको बाहर निकालेगा, कभी कोई लोग, कोई रिश्ता, किसी की मदद ये बाहर निकालेगा। तीसरा है सेल्फ ट्राई, खुद की कोशिश से आप उस समस्या से बाहर आ सकते हो। जब पैसा काम में नहीं आ रहा है, जब कोई व्यक्ति काम में नहीं आ रहा है उस समस्या से निकलने के लिए, तो खुद की कोशिश, सेल्फ ट्राई। और चौथा होता है टाइम, उस समस्या को वैसा ही छोड़ दो। समय के साथ साथ आपकी समस्या वो समस्या नहीं रहेगी। ये 4 बातें मेरे साथ दोहराना है। क्या क्या? हर समस्या को टाइम पर साथ छोड़ दो, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे कोरोना की परिस्थिति आई है, ऐसे तो काफी सारे पेंडेमिक सिचुएशन इसके पहले भी आके गई है और हम उससे बाहर आए हैं। तो इस बुरी सिचुएशन से भी हम जरूर बाहर आएंगे। ये एक होप रखना पड़ेगा, एक आशा रखनी पड़ेगी, आशा को बढ़ाना पड़ेगा, होप को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी, तभी तो जिंदगी जीने का मजा आएगा। कुछ अलग अनुभव इस सिचुएशन में भी हर किसी ने लिए होंगे, इस प्रकार के अनुभव लेना है। असल में इंसान जिंदगी में आया ही तो इसलिए है कि वो अलग अलग प्रकार के तजुर्बे ले पाए, अनुभव ले पाए। ये कोरोना की सिचुएशन भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाने वाली है, तो उस निसर्ग के, नेचर के सीख को भी हमको सीखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं अब चाहता हूं कि आगे का जो समय है वो हम कुछ सवाल जवाब पर दे, कि जो आपने सीखा है, समझा है, जाना है। आपके मन में काफी सारे सवाल होंगे, मैं अब आपके सवाल सुनना चाहता हूं ताकि मैं उस पर जवाब दे पाऊं। सो हेलो हेलो, एक हेलो। पार्टिसिपेंट। हाँ यस। हाँ सर, एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए सर। हेलो बोलिए सर, बोलिए सर। डेली वर्क में से जो भी ट्रेस आता है yes. वो मापने के लिए कौन से अपने पास टूल्स होना चाहिए, या कैसा समझना चाहिए? अच्छा देखिए, वैसे हमारे पास पर्सनली कोई आता है तो ट्रेस को मैनेज करने के लिए, डिप्रेशन को चेक करने, देयर आर सो मेनी टेस्ट अवेलेबल इन साइकोलॉजी। लेकिन अभी खुद को अभी आप मानना चाहते हो तो ये ट्रेस किस वजह से आया ये समझना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आपको काम मिल रहा है, उस वजह से ट्रेस आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप समझना है कि कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर बदल रहा है क्या। मतलब आप उस काम को सोच के उस काम को टाल रहे हो करने के लिए, या नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपकी चिड़चिड़, बेचैनी बढ़ रही है, रेस्टलेस है, आपकी नींद बराबर नहीं आ रही, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको गुस्सा आ रहा है किसी चीज पर। तो ये सारे लक्षण है, सिम्टम्स है, जिससे आप समझ सकते हो कि आपका स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, उस वजह से स्ट्रेस आ रहा है। तो स्ट्रेस को दूर करने का आसान तरीका है कि जिस वजह से स्ट्रेस आ सकता है ऐसे कारण को हटाया जाए। किसी काम को लेकर आप स्ट्रेस में हो तो उस काम को पूरा कर दो, समय के साथ साथ स्ट्रेस नहीं रहेगा। उस स्ट्रेस वाली सिचुएशन को ही हटा देंगे तो स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो और उससे बाहर आ सकते हो। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Participant can also post their question in the chat box if they want. Hello.
सर यस, आप जब तक सवाल पूछे। हाँ हाँ, सर आई पूछिए। हैव अ क्वेश्चन। सर मेरा सवाल है कि ये डायनामिक योगा क्या है, हम लोग भी कर सकते हैं क्या उसको, डायनामिक योगा? यस यस, डायनेमिक योगा मतलब ऐसा योगा जो कम समय में किया जाए, उसको ऑफिस योगा भी कहा जाता है, जहां पर कुछ ब्रीथिंग टेक्निक आप कीजिए, जैसे प्राणायाम है, जहां पर अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं। ये कुछ मिनट के लिए आप 6-7 मिनट के लिए करते हो। उसके बाद बॉडी के लिए आप बैठे बैठे स्ट्रेचिंग कर सकते हो, बॉडी को अलग अलग तरीके से मूव करते बैठे बैठे जितना कर सकते हो उतना बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, अपने अलग अलग प्रकार के मसल को स्ट्रेच करना। ब्रीथिंग टेक्निक ये 7-8-10 मिनट यदि हम करते हैं और ये कम समय में उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है जो 1 घंटा 1.5 घंटा हम योगा करते हैं उतना, तो इसलिए उसको डायनेमिक योगा बोला जाता है। इट्स अ प्रोसेस, बट अभी ये विषय उस पर नहीं है इसलिए मैं ज्यादा उस पर बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं थोड़े से में बताना चाहता हूँ कि डायनामिक योगा, ये ज्यादा योगा करने से जो हमें रिजल्ट मिलता है वही रिजल्ट हमें कम समय में योगा करने से मिलता है। और इसमें 2 चीजों को इन्वॉल्व है, एक ब्रीथिंग टेक्निक, प्राणायाम की कुछ टेक्निक्स उसमें ली गई है, अनुलोम विलोम कुंभक, ये सारी चीज आप करते हो तो उसको कंटिन्यू कीजिए। ब्रीथिंग टेक्निक पर ध्यान दीजिए, अपने धीरे से सांस लेना, लंबी सांस लेना, ओमकार करना, उसके बाद बॉडी की स्ट्रेचिंग, ये इतना यदि हम करते हैं तो कम समय में भी हमको बेहतरीन पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, फिजिकल हेल्थ वाइज एज वेल एज मेंटल हेल्थ के लिए भी। और उसका एक प्रोग्राम है, अलग प्रकार का एक डिजाइन किया हुआ, उसको डायनेमिक योगा बोला जाता है, जो मैं काफी जगह पर लाइव लेता, बट इट्स नॉट इस वेबिनार पर वो प्रैक्टिकली सिखाना पॉसिबल नहीं है। बट जहां तक आपका सवाल है, आई होप कि आप सेटिस्फाइड होंगे कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। हेलो, हाँ हाँ सर, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर सुन Yes, पा रहे हैं बिल्कुल। पोपटे सर बहुत अच्छा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। मैं प्रोफेसर कुंड्रा बोल रहा हूँ, जनता कॉलेज से। हाँ सर नमस्ते। और सर रिसोर्स पर्सन भी बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सारी चीजों को। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि कभी आप स्ट्रेस में आए थे क्या, ऐसा पूछना है मुझे, और आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। यस डेफिनेटली, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी ना कभी ट्रेस में नहीं आता है, क्योंकि ट्रेस ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे मैंने कहा, हर प्रकार की ऐसी सिचुएशन आती है, कोई प्रकार की कोई हानि हो जाए, कोई लॉस हो जाए तो उससे ट्रेस आता है। तो मेरे जिंदगी में भी ऐसा आया है, लेकिन उस वक्त मेरे काम में क्या आया है कि मैं जो लोगों को सिखाता हूँ, मेरे क्लाइंट्स को बताता हूँ, मेरे पेशेंट को बताता हूँ, वो चीज अपनाने की जब बारी आती है तो वो चीज मैंने की और मुझे हेल्प मिला। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सवाल से रिलेटेड एक बात है कि हमारे जिंदगी में स्ट्रेस, तनाव, प्रॉब्लम ये है, ये पार्ट है उस जिंदगी का, लेकिन उसको बाहर रखिए तभी आप उसको हैंडल कर सकेंगे। मतलब जिंदगी को आगे बढ़ानी है, जिंदगी की नैया नाव यदि हमको आगे बढ़ानी है तो स्ट्रेस, तनाव, प्रॉब्लम ये हमारे आसपास पानी की तरह होता है। वो जरूरी है हमारे अंदर की पोटेंशियल बाहर निकाल के सही काम करने के लिए, बट प्रॉब्लम तब हो जाता है जो बाहर जो पानी है वो नाव के अंदर आ जाए। जो स्ट्रेस, तनाव है, फेलियर है, असफलता है, लॉस है, नुकसान है किसी भी प्रकार का, वो हमारे अंदर जब आ जाता है, उस जहाज के अंदर आ जाता है तो नैया को डुबा लेता है। बस आपको ऐसा ही करना है, उस स्ट्रेस, तनाव को बाहर रखिए, जितना हो सके उसको बाहर रखिए, तभी आप उसको मैनेज कर पाते हैं। तो सही समय पर बुरे से बुरे सिचुएशन में सही ज्ञान को याद करके उसे इस्तेमाल कर पाना, ये सोल्यूशन रहता है हर प्रकार के स्ट्रेस को बाहर निकालने का। और ऑफकोर्स आपका जो सवाल है काफी अच्छा सवाल है। मैं और दुनिया का हर इंसान हर सिचुएशन में अलग अलग परिस्थिति में स्ट्रेस में आता है, और अपनी समझ, अपनी साइकोलॉजी, अपने विचार, अपने ज्ञान, अपने अनुभव के आधार पर समय के साथ उससे जरूर बाहर आता है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया, थैंक यू सो मच। जी नमस्कार सर। थैंक यू सर। हेलो, बोलिए सर, ऑडिबल है। जी नमस्कार सर, मैं डॉक्टर सुमन कटियार से बोल रहा हूँ। सर हमारे जीवन में कभी कभी समस्याएं इतने विकराल रूप ले लेता है, तो जनरली हम लोग उस समस्या से बचना चाहते हैं, और इस क्रम में स्ट्रेस काय आपल्याकडे काहीच नाही, सगळंच आपल्याकडे दाखवायचं नाव घेतलं खबरदार। तो जहां तक आपका सवाल मुझे सुना है, मैं आप ऐसा समझता हूं, मैं दोहराता हूं आपका सवाल, कि जीवन में सच में ऐसी कुछ परिस्थिति आ जाती है जहां पर हम बहुत ज्यादा ट्रेस में आ जाते हैं, परिस्थिति विकट ऐसी आ जाती है कि समझ में नहीं आता कि क्या करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक नया फॉर्मूला जो आपको जरूर हेल्प करेगा, और जितने भी सुनने वाले हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनको हेल्प करेगा। वो है फॉर्मूला सिचुएशन प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिजल्ट। हेलो, मैं फिर से दोहराता हूँ, सिचुएशन प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिजल्ट। सिचुएशन, परिस्थिति कितने भी भयानक क्यों ना हो, यदि उस परिस्थिति को बदलना हमारे हाथ में नहीं है
तो हमारे हाथ में उस बदले हुए परिस्थिति में, उस डिफिकल्ट सिचुएशन में, वो कितनी भी भयानक क्यों ना हो, उसमें सही रिस्पांस यदि हम देते हैं, उस सिचुएशन में सही रिस्पांस देते हैं, तो हमारे रिजल्ट बदल जाते हैं। 2 + 2 = 4। 2 ये सिचुएशन है और 2 ये उसका रिस्पांस है, रिजल्ट 4 है। लेकिन ये सिचुएशन वाले 2 को यदि हम बदल नहीं सकते, तो हमारे हाथ में जो रिस्पांस यानी प्रतिक्रिया, अभिप्राय देने का जो हमारे हाथ में है, उस चीज को, उस 2 को यदि हम 1 कर दे, 3 कर दिया, उसमें कुछ बदलाव के, तो हमारा जो आने वाला उत्तर है, आंसर है, रिजल्ट है, वो बदल सकता है। सिचुएशन प्लस रिस्पांस = रिजल्ट। तो कितनी भी भयानक से भयानक परिस्थिति आने दो, उस बुरे से बुरे परिस्थिति में हम यदि सही रिस्पांस रखते हैं तो उससे बाहर आ सकते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको जरूर बताना चाहूंगा कि एक सेनापति आता है और अपने कमांडो को कहता है कि सर, हम बड़े बड़े बुरे तरीके से फंस गए हैं, हमें दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया है, अब हम बच नहीं पाएंगे। तब वो बड़ा अधिकारी कहता है, अरे वाह, ये तो अच्छी बात हो गई कि दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, अब हमें दुश्मनों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पे खड़े रह के बस अपनी राइफल को, अपनी बंदूक को गोल गोल घुमाते हुए बस उड़ाना शुरू कर दो। मतलब बुरे से बुरे सिचुएशन में भी वो पॉजिटिव एटीट्यूड रख पा रहे हैं, और ज्यादातर बार यह बुरे सिचुएशन में दिया हुआ सही रिस्पॉन्स ही इंसान को बुरे समय से, बुरे परिस्थिति से बाहर लाता है, और वो एक तजुर्बा दे पाता है और एक अनुभव दे पाता है। आप जितने भी लोग सफल है, उसका कारण आपके जिंदगी में आए हुए वो प्रॉब्लम्स है, वो सिचुएशन है, उसको डील किया है आपने, उसका सामना किया है, उसीलिए तो आप सफल हो पाए हैं। तो यहां से आगे भी आपके जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, वो आपके पोटेंशियल, आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए आएंगे। उस अनुभव को लीजिए और सफल होजिए। तो हमेशा जीवन से तो मैं हमेशा यही मांगता हूं कि प्रॉब्लम्स ऊपर वाले ने मुझे जितने देना है दीजिए, बस मेरी वो शक्ति जो है उस प्रॉब्लम को झेल पाने की, बस उसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ। प्रॉब्लम्स आएंगे, मुझे सिखाएंगे, मेरे पोटेंशियल क्षमता को बढ़ाएंगे। वैसे आपके जिंदगी में प्रॉब्लम्स आपकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आते हैं। इस सोच समझ के साथ जीवन को देखिए। हर समस्या का हल होता है आज, नहीं तो कल होता है, बस इसको याद रखिए। हेलो सर। हेलो, हाँ बोलिए सर। यस, हेलो सर। हाँ पूछिए। थोड़ा मेरा प्रोग्राम मिस हुआ है, आप पीपीटी शेयर कर सकते हैं? हाँ सर, शेयर कर देंगे, यूट्यूब पे शेयर कर देंगे, आपको लिंक भेज देंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं चैट बॉक्स में एक सवाल देख रहा हूँ कि निगेटिव एटमॉस्फेयर वर्क प्लेस में, काम की जगह पे नकारात्मक ऐसा निगेटिव एटमॉस्फेयर रहे तो क्या करें। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि हर व्यक्ति का स्वभाव, हर व्यक्ति का वाक्य वर्क प्लेस में हो या कहीं पर भी हो, आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते। बुरे से बुरे परिस्थिति में, माहौल में, लोगों के बीच में आप आपका नजरिया, आपकी सोच कैसे रखते हो उस पर डिपेंड करता है। मतलब आसपास पूरा कीचड़ हो, फिर भी आपको कमल की तरह खिलना ही पड़ेगा। मतलब बाहर बहुत निगेटिव बोलने वाले हो, काम करना है उतने समय के लिए, लेकिन किसकी कौन सी बातों को रिसीव करना है और कौन सी नहीं करना, ये अपने हाथों पे होता है। अपने आसपास निगेटिव लोग हैं, नकारात्मक बोलते हैं, अपने को पीछे लाते हैं या फिर अपने बारे में बुरा बोलते हैं, ये तो चलते रहेगा। बट उसमें से कौन सी बातों का हम पर असर करवा लेना है और नहीं करना है, वो रिसीवर हमारे पास में है। किसी और को ये मौका मत दीजिए कि वो कुछ कहे और आपको गुस्सा आ जाए, आप टेंशन में आ जाए। अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखिए, यही इस पर सॉल्यूशन होता है। क्योंकि काफी बार जो परिस्थिति है, वर्क प्लेस में हो या कहीं पर, वो परिस्थिति बदलने का हमें चांस नहीं होता है। मतलब हाँ, किसी की बीवी अच्छी नहीं है तो वो वाइफ को चेंज कर सकता है, लेकिन कहाँ पर काम करता है वो जॉब नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि वहां का वातावरण निगेटिव है। इस कारण की वजह से रहना तो उसी में है, लेकिन उसी में रह के अपने आप को कैसे निकाल के अपने उस वातावरण में भी हम पॉजिटिव रिजल्ट दे पाते हैं, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो इस प्रकार की सोच के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे तो जरूर आपको फायदा होगा। एक सवाल यहाँ पर मैं पढ़ पा रहा हूँ, वो है कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पाए। मैं यहाँ पर बताऊं कि इमोशन को कंट्रोल करने के पीछे मत जाइए। हम जितना इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतने वो स्प्रिंग की तरह बाहर आते हैं। उसको दबाना नहीं है, उसको चैनलाइज करना है। देखिए किस प्रकार के इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं। यदि किसी के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो वो और ज्यादा आएगा, तो उसको दबाइए मत। तो आपका इमोशंस जो है एक प्रकार की एनर्जी है। समझिए इमोशन को, इमोशन मींस ई प्लस मोशन, ये एनर्जी होती है जो मोशन में आती है। तो कोई भी प्रकार की पॉजिटिव इमोशन हो या निगेटिव हो, वो अपने शरीर में, मस्तिष्क में एक एनर्जी जनरेट करती है। तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो आप वॉक के लिए चले जाइए,
जिम या ऐसी कुछ एक्सरसाइज कीजिए, अपने अंदर के उस एनर्जी को मोशन में लाइए। मतलब मैं कहूंगा कि अपने इमोशन को रास्ता दीजिए, वो उसको चैनलाइज कीजिए, उसकी दिशा बदलिए। जैसे जाने सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल शुरुआत में कहा था कि महात्मा गांधी को ट्रेन से निकाला गया था, तो उनको भी ट्रेस तनाव आया होगा, गुस्सा आया होगा, बट उन्होंने क्या किया, उसको चैनलाइज किया और देश के आजादी में वो गुस्सा लगा दिया। बस यही होता है, इमोशंस को हमें कंट्रोल नहीं करना है, नियंत्रित नहीं करना है, वो स्प्रिंग की तरह होता है और बाहर आएगा ही, दबाना नहीं है। तो उसको दिशा देना है, उसको मार्ग देना है, उसको चैनलाइज करना है, ये उसका रास्ता हो सकता है। Okay, sir. Now we will proceed to the last section of our webinar, and I would like to congratulate you for your wonderful views on stress management. I think everybody will be benefited after the webinar. So, sir, the most important part I like about your webinar is that you have given examples from Indian mythology, and especially that proverb, that tension they make and you'll have to manage that tension. So I appreciate that. And so to offer in the last part of our webinar, that is to offer vote of thanks, I would like to invite Amol Malke, Assistant Professor, Rashtrakuta Technology College of English. Malke sir, are you there? Malke sir, kindly unmute yourself. Malke sir. Hello. Yes sir, you are audible. Hello. We'll actually need to use what's called a regular expression. Enter the value /submit order to indicate that the URL preceding it. I would like to sincere thank almost a person one day webinar on Shri Advocate Ananta Gulzakshe, Managing Director of United Souls Academy and Be Positive Academy. He has enthralled us by his outstanding solutions to the pertaining issue of mental stress. Sir, सर आवाज नहीं आ रही क्लियर। There must be some network issue. There is lightning and thundering outside. So let me complete vote of thanks on behalf of Professor Malke sir. I would like to thank Advocate Ananta sir for his wonderful lecture on the issue. He has highlighted some of the most important issue of mental stress, and I think it will be going to help all of us. So I would like to thank him. I would like to also thank our president, Dr. Deepak Yavle sir, for supporting us for this webinar and always inspiring us. And my sincere thanks also to our principal, Professor K.R. Patil sir, and also to Honorable Dr. Jane sir, our guest of honor. And I would like to also thank all the online teaching fraternity of our college. And in the last, I would like to thank all the participants, because without them this program could not be possible. So I would like to thank you all. Unfortunately, we are not able to continue because there is some thundering, lightning at our end, and because of that we have lost our contact with our fellow colleague as well. So thank you very much all of you, and thank you very much for joining. I would like to inform you that feedback link will be shared in the group. Feedback link will be shared in the WhatsApp and Telegram group. So please don't leave group. Okay, so thank you. So hello. Hello. हाँ, तो मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी ऑर्गेनाइजर टीम का, महाविद्यालय के प्राचार्य का, और जिन्होंने भी ये वेबिनार सफल करने के लिए कोशिश की है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं उन सबका धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि जो वेबिनार से मैंने बातें शेयर की आपको जिंदगी में जरूर पॉजिटिव चेंज लाएंगे। और अंत में मेरे शब्द कह के इस वेबिनार को हम खत्म करेंगे कि मुश्किलें दिल के इरादे लाख आजमाएंगी, मुश्किलें दिल के इरादे लाख आजमाएंगी, निगाहों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी, गिरकर भी
मत हारना मेरे दोस्तों, गिरकर भी मत हारना मेरे दोस्तों, क्योंकि यही ठोकरें तुम्हें एक दिन जीना सिखाएंगी, यही ठोकरें तुम्हें एक दिन जीना सिखाएंगी। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you.